The next chapter that we start off is our chapter number 4, termed as cost of capital chapter. Marks wise weightage of this chapter is approximately almost every attempt, either 5 marks. Generally, I can call it as 10 marks chapter, one of the favorite chapters of ICI. Two super favorite chapters. One is capital budgeting, other is come on, cost of capital. Cost of capital. Why do we calculate cost of capital? Come on, every student keep on revising. Why do we calculate cost of capital? Everyone, fast. To compute the cost of the company. To compute cost of various funds that we have raised, can I call it as overall cost of capital is WACC only? Correct? Yes. Once we calculate WACC, suppose your overall KO is 10%. What will you do of this KO? Why do you compute COC? Think To so use it So as a discounting factor. discounting factor for capital budgeting projects. Perfect. And compute overall cost of Capital so the that fund. whenever we invest, we know that we have borrowed or we have got the funds at such a rate. So wherever you invest, suppose 10%, your ROI should be greater than 10%. Next, Yes, tell sir. me 4 components of cost of capital. Everyone, come on, everyone in the house. Equity, debt, equity, lecture, Equity, it is KE, Preference. KP, yes, KB, KD, KD, KR. KR, KD, KL, correct? So Yes, four sir. components of cost of capital. It is cost of equity, cost of preference, cost of debt, cost of loans, KR. Next, what is the formula for perpetual debt slash loans? Perpetual debt slash loans. Perpetual means redeemable, irredeemable. 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 Something like this. If it is irredeemable. As per IRR method, everyone in the house, as per IRR method, dash is equals to dash. Come on. As per IRR method, present value PVCI of is equal cash to inflow PVCO. at the rate of And IRR IR. is equals to present value of cash outflow at OC slash COC slash discounting factor. Once we issue debt, we are talking of, right? Once we issue debt, what do we receive? Come on, think. What do we receive? Yes, funds. Suppose we issue Funds. debentures, Funds. we get 100 rupees, 100 rupees. Issue price of the debentures is 100, no flotation cost. So present value of cash inflow 100, correct? At Yes, sir. some rate should equate with, come on, present value of cash outflow every single year since you have issued debentures. These debentures are infinite debentures. Every single year, your outflow is interest, correct? These Yes, are sir. yes, outflows to be discounted at OC slash COC slash discounting factor. Since you have raised money via debt, OC here refers to KD. So interest at the end of first year into 1 upon KD. Come on. Plus interest into 1 upon KD. Only KD or KD1, KD2 plus, come on, 1 upon KD3 plus into 1 upon KD4. This will happen till infinity, correct? The Yes, amount sir. of interest remains constant. Interest is a tax deductible expense. So our net interest is not just interest, it is interest 1 minus Interest 1 tax. minus tax. So I can call it as something like this: interest 1 minus tax into 1 upon cumulative discounting factor from the end of first year till infinity is KD. What you just now received is either issue price. Sometimes can there be flotation cost in the question? Come Yes. on, come Yes, on. sir. So Yes, either sir. this is Net net proceed. proceeds or issue price. So we want to know the formula of KD. So KD going there, KD is equals to interest. Come on, bacho, come on, 1 Interest minus 1 minus tax Mhm. upon net net proceeds. proceeds slash issue price into Issue 100. price That into is 100. always computed in terms of percentage. Hello, everyone. Yes.
Yes, Why sir. Yes. there is no redemption? Why there is no redemption? Because it is a perpetual debt. Perpetual debt. Brilliant. So formula of perpetual debt can be directly written as KD. It is interest 1 Interest minus 1 tax minus upon net tax. proceeds slash issue price into 100. Into Can I write here only net proceeds? Any doubt here? Net proceeds is dash minus dash. Come on. issue price minus Issue Issue price flotation. minus price Minus minus flotation 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 cost. 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 Flotation cost is cost incurred for issuing securities in the market. It includes underwriting commission. It includes advertisement. It includes amount paid to SEBI for listing, legal charges, transaction charges, every single thing. Calci, please. A company issued 12% 1,000 debentures at rupees 1020, incurring a flotation cost of 30 per debenture, tax rate 30%, fine KD. How do you come to know that this is perpetual debt or redeemable debt? Come on. Redemption value Redemption period नहीं दिया है. Perfect. Life of the asset is not given. If life is not given, it is by default perpetual. Calci, please. Can you tell me interest 1 minus tax figure is? Interest 1 minus tax 84. figure? 84. Numerator. 84. Perfect. Numerator. Denominator net proceeds. Come on. 990. 990. 990 into 100. Final figure? 8.48. 8.48%. 8.48%. Next. Question number 5. What is the formula of KD when life is given and debt is repaid in lump sum? Repaid in lump sum. Acha, now think of if life is given. So till infinity, case is not there. For 5 years, suppose life is 5 years. So for the next 5 years, what outflow goes is interest one, two, three, four, five, interest. In the fifth year, since amount is paid in lump sum, we have redemption value also. Correct? Discounted by some rate, discounting factor either 8%, then we calculate something called as IRR. That IRR itself is nothing but KD. Everyone, Yes. either you can go via something called as this system is called as yield to maturity. Hello. Yield to maturity. Hmm. Next, if I don't talk about this system, there is another approximation method Approximation method. where KD is equals to, come on, interest 1 Interest 1 minus 1 minus tax minus tax plus 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 RA redemption redemption value minus value minus NP net minus divided net by proceeds. 2 proceed divided by N bracket whole divided by Redemption RA plus value. redemption NP value divided by 2. plus net produce divided by 2. Perfect. Simple. Everyone. Next. Question number 5 done. Question 6. A company issued 100 rupees debentures at a discount of 3 per debenture. Tell me something. Discount of 3 97 RV. is issue 97 price. होगा. Is issue issue price price. Issue 97. Issue price. price Flotation cost is 2 per debenture. minus 2. Price minus 95. flotation. 95. So our net proceeds come down to 95. Premium 97. on redemption is 7. Can you tell me redemption value? Redemption value 107. 107. 07. Interest is at the rate of 9%. Tax rate 40%. 9%. Calci, please. Net interest 1 minus tax gives you, I guess, 5.4 Yes. plus redemption value 107 minus net proceeds 95 divided by life 10 years. Hello, whole divided by Yes. 107 plus 95 divided by 2 into 100. Any doubts? No, No. sir. No, sir. No, sir. If is the formula question 5 applicable if debt is repaid in installments? Is approximation No, formula sir. applied in amortization of debt? Hello. No, sir. No, No, no. sir. If that is not applied, the only method that we can solve the sum is IRR method. If IRR method is followed, what will be the formula of KD if debt is paid in perpetual? If debt is perpetual, we remove this formula from there only that KD is equals to interest 1 minus tax Interest upon net 1 minus proceeds into 1 100. minus tax upon net proceeds. issue price. Right. Next, try this. If IRR method is followed, what will be the formula of KD if debt is finite but repaid in lump sum? Is there any formula for such? Approximation. Right. Is there any formula for No, this? sir. No. Think. Approximation. Yes. Yes, formula is there, no?
KD Yes, debt sir. is finite. Finite means life is given. Repaid in lump sum means approximation method formula only. Next, Yes, try sir. this. ABC Limited issues 15% debentures of face value 1 lakh, redeemable at the end of 7 years, life 7 years. Discount on issue 5% with flotation cost 1% of face value, tax rate 50%. Calculate KD by IRR and otherwise. Will you be able to solve? Yes, no. Yes, Yes, sir. sir. Smartness applied. Will we solve this first by approximation or first by IRR? First by Approximation. approximation. Approximation method. We get some rate. Suppose, for example, you get it as 7.38%. So then IRR becomes easy. You have two Yes, rates. sir. One Yes. is 7, one is 8%, and then we get some figures related to almost that calculation. If IRR method is followed, what will be the finite formula of KD if debt is finite but repaid in installments? Come on. No formula, sir. Sir, no Brilliant. Direct. formula. Because debt is repaid in installments, no formula. You'll have to solve the sum by dash method. Only solved IRR. by IIR. IRR method, IRR. called as yield to maturity. ABC Limited issues 15% debentures of 1,000 each, flotation cost 100. KD where debt is repaid in equal installments starting from the end of first year. Will you be able to solve this? Come on. Yes, Yes, sir. sir. All the cases of preference shares. Come on. KP, irredeemable. Irredeemable KP. Come on, everyone. Preference dividend upon net proceeds into 100. Perfect. If redeemable KP, come on, preference dividend Preference plus dividend. Plus redemption value redemption value minus net minus net proceeds proceeds Upon upon it. N. Redemption value plus net proceeds plus upon 2 net into proceed divide by 2 into 100. 200. Kelsey, please. A company issued 100 preference shares at a discount of 2%, dividend rate 11%. KP is entire class. KP is equals to 11.22%. 11.22%. Numerator 11, denominator 98, and 200 is 11.2. 11.22%. Next, a company Yes. issued 12%, 1,000 preference shares at 2% premium with a flotation cost of 1% of face value, redeemed at a premium of 5% after 5 years, solved by IRR and otherwise. First thing that you do is solve by IRR or otherwise. Otherwise, Otherwise, Otherwise. KP, Calci beta. Preference dividend is, help me figures, 120 120. 120. 120 plus redemption value. 1050. Brilliant. Redeemed at a premium 1050. of 5%. Redemption value 1050 minus net proceeds 970. 970. Yes, sir. 1000 minus 2% minus 1% Minus 2%. floating. 990. नहीं premium. Minus 2%. 1010. 1% ऐसे. Plus 2%. 1% of face value है. Ha, 1 second. This is premium beta. Premium. 1,000 हाँ is face value. 2% premium. plus So 2%. 1,000 plus 2% is 1,020. Minus Yes, sir. 1% is 10. Minus 10. So your net proceeds is 1010. 1,010. Divided by life is how many years? 5 years. 5 Whole years. divided by 1,050 plus 1,010 divided by 2 and 200. Come on. Understood? Highlight us, please. Yes, sir. 2% premium. Flotation cost 1%. Next. Question number 16. 12.94. Not interested. Tell me no. Am I really interested in final answers today? No, No, sir. sir. Next. Because if you give me correct calculations, I guess answers are bound to be correct. 5 theories. Come on. 5 theories. Come on, come on. Expected dividend approach. Can you tell me formula for Expected expected dividend approach? KE is equals to expected dividend is D1 D1 upon P0 P0 into 100. Into 100. into 100. Expected earnings approach, come on, E1 upon E1 P0 upon into P0 100. into 100.
Next, realized dividend approach. P0 upon, sorry, D0 upon D0 P0 into upon P0. 100. Perfect, into 100. Next, realized earnings approach. E0 upon E0, P0 into E0, 100. Perfect. Next, constant dividend growth model by Gordon. Derivation done. KE is equals to D1 upon D1 P0 upon plus P0 plus growth. G into 1. Plus G into 100. Next, give an example deriving the growth factor used in the formula. Did we derive the growth factor? Hello? Yes, sir. Derivation of growth factor was done. Just check, Yes, just sir. check. Yeah. Just go through that Yes, sir. once. Just go through that. Just go through that. We did something called as something like itna to kamal ho. Yes, yes, yes. Derivation done. We took book value, we took earnings per share, we took dividend payout, we took retention, we took growth. Then we derived every year book value per share is increasing by 6%. Check no, beta, check no. Next, what is cost of? Hello there, beta. Should I wait? Yes, sir. Yes, sir. Should I wait? No, sir. No. Perfect. Cost of retained earnings. Can you explain me cost of retained earnings? Why there is cost of retained earnings? Yes. क्योंकि सर Right. जो पैसा हमने रिजर्व में रहने दिया उसको भी इन्वेस्ट करेंगे तो उस पे भी अर्निंग होगी तो अर्निंग होगी उसका और कॉस्ट उसी भी अर्निंग्स लगेगा. पे शेयर होल्डर्स को वो मेरे से चाहिए होगा. सो Yes. अगर अगर मैं अर्निंग्स रिटेन्ड अर्निंग्स मींस वो पैसा जो मेरे को डिविडेंड के फॉर्म में बांट देना चाहिए था नहीं बांटता अपने पास रखता हूँ तो शेयर होल्डर्स को उस पैसे भी पे कुछ रिटर्न्स चाहिए. कितना रिटर्न्स चाहिए? अगर क्वेश्चन कुछ नहीं बोलता है तो बाय डिफॉल्ट जितना वो लोग का कॉस्ट है के वही हमारा KE. कॉस्ट हो जाएगा. बट के ई Yes, sir. एंड के आर नॉट इक्वल इफ फर्स्ट केस flotation cost is given, Flotation cost is given personal and income personal Personal tax income is tax given. is given. WACC refers to overall cost of capital. Overall cost of capital is calculated in two ways. Amount given, percentage given. This is capital structure theory. Everyone, yes or no? Yes, sir. Yes. Next, amount into cost. We get overall cost. This is overall cost calculated as, come on, how much is the figure, total figure? 8,15,000. 8 lakhs 15,000. So our ultimate cost is 16.16. 3. KO is 16.3%. 10.3. This Yes. can be given as weights 100. So this is 60, this is 30, this is 10 into respective 16 into 6, 18, 6 are 18, 5 are 90, 10.8. This is 4.5. Hello, hello, hello. This is 1. Yes, sir. So this is 1. like 16.3. So if we give weights, we directly arrive at something called as KO. Next line, sir. Next line. The capital structure of a company consists of equity shares 50 lakhs, 10% preference shares of rupees 10 lakh, 12% debentures of 30 lakhs. The cost of the equity is 14.7%, tax rate 30%. Calculate WACC. Can you calculate everyone? Source, debt, equity. Preference is also Preference. there. Preference is also Yes. there. Yes. Debt capital is, sorry, preference. Okay. Equity first given 50 lakhs. Next, 50 lakhs. 14.7. preference and debt are 10 lakhs. Oh, 10 debt is lakhs. 30. Preference 10 30 lakhs. lakhs. Next, Yes, sir. these are sources. Now Hmm. we need to calculate weights. So this is 90 lakhs consisting of this is 100. Kasi sir, we get a respective rates in a shortcut 100 lakhs. 55.56. 100 56. divided by 90 lakhs into 90 into 30. it is 33.33. This is 55.55. This is 11.11. Ultimately, weights are given. Now we need Yes, Hmm. sir. percentage cost and percentage cost. Can I calculate directly or I should show some calculations? बोलो ना बच्चों. You should show some Okay. or the other calculations, correct? First thing, Yes, yes, sir. 10% preference shares. What to write? Have they given us net proceeds? no, sir. No. So No, sir. preference cost 10% is as it is. 10% only.
Cost of equity is 14.7%. Come on. Equity As has to be as it is. 14.7%. Next, Yes, sir. debentures. Can I write 12% only? Yes. How simple. No. No, X. sir, 30% tax 8.4%. है. So 12 minus 8.4%. 30% gives us 30%. 8.4%. 8.4. I guess you can easily calculate KO. Everyone, any doubts? Yes. Next, No, question sir. number No. 20. Question 26. Yes, perfect. A company is considering raising of funds about 100 lakhs by one of the two alternative methods. 14% institutional term loan, 13% non-convertible debenture. The term loan option would attract no major incidental cost, and debentures have to be issued at a discount of debentures discount 2.5%, will involve cost of issue 1 lakh. Advise the company better option, tax rate 50%. Come on, Calci, which is the best option? Come on, everyone, which is the best option? Best option. सर लोन Non-convertible. का 7% एंड डिबेंचर का Loans 6.74 have to be 7% because straight away minus 50%. So माइनस K is 50%. 7%. But for debentures, it is interest 13% minus 13% on 100 lakhs is now 6.5. 6.5 lakhs यस plus सर. redemption value नहीं not आएगा. आएगा नहीं आएगा. नहीं आएगा. नहीं आएगा. Okay, so redemption value not there. So then this is 6.5 lakhs. Whole divided by net proceeds is 96.50. 96.5. into 100. So 6.5 divided by 96.5% is 0.74%. 6.73%, 74%. यस. Which is the यस better सर. option of raising funds? 6.74% or 7%? डिबेंचर. Debentures. Debenture. 6.73. Discussion. Yes, perfect. We can compare the above two options as both are debt options. Never compare KD with KE because KD is always cheaper than KE. Correct? In such situation, यस decision सर. is being made by seeing the impact on market price, which you have learned in capital structure. Next question. The shares of PMG Textiles are selling at 20 per share. It has paid a dividend of 2 per share last year. What is 20? Come on, everyone. Figures, please. P0. P D0. 2, 20. D0. 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 Next, the estimated growth rate of the company is approximately 5% per annum. G is 5%. Calci 5%. Yes, Yes. sir. E is equals to Calci. KE is equals to D1 upon P0 plus growth into 100. Come on. Plus growth into 100. 15.5. 15.5. 15.5%. 15.5%. Rashmi, Hmm. careful. Find the estimated market price of equity shares if growth rate rises to how much percent? 8%. 8%. 8%. If growth rate rises, hold on. Growth rate rises. We want estimated market price. So today your formula is P0 is equals to D1 upon KE minus D. Hello, Hmm. Yes, sir. calculate. Price is asked. Calculate. 28. First answer. 28. How did we do that? First thing, sir. 2 plus 8% is 2.16. D1 will change. D1 will Oh, change. yes. Divided Yes, by 2.16. 10.5%. Come on, is it 20.57? 2.16 divided by 10.5%. 28.8. It is सर not Yes, के sir. के तो 10%. 15.5% है. 15.5 है. आपका growth rate 8% है. So it is हाँ 8 है. 28.8.
2.16 divided by 7.5%. It has to be 28.8. Next, Yes. Yes, if sir. it falls to 3%, entire class falls to 3%, So entire class. 16.48. 3.48%. Brilliant, no? Brilliant, no? D1 changes to 2.063%. Growth rate is Yes, sir. 3%. KE is 15.5%. So 12.5% divide, I guess, easy. 16 point. Perfect. 16.48. Yes. Determine the market price of the shares, assuming growth rate is 20%. Calci, growth rate 20%. सर नहीं आएगा क्योंकि केई हमेशा ग्रोथ से ज्यादा होता है और इसमें हमें ग्रोथ 20% दिया है जो ज्यादा है तो नहीं होगा. नहीं होगा, सॉल्व ही नहीं होगा. गॉर्डन का assumption इनवैलिडेट हो गया. नेगेटिव Yes. आएगा बराबर. प्राइस. Your company's currently share is quoted in the market at 20 rupees. It pays a dividend of 1 per share. Investors expect a growth rate of 5% per year. Calci, KE is K is D1 upon B0 plus growth into 100. Come on. 10.25. Yes, sir. 10.25, 25%. 5. 23. Yes. Wrong answers. 25. Different. 25. Next, if it is anticipated that the growth rate is 10.25. 6%, indicated market price, come on. Growth rate 6%, indicated market price. Brilliant. 24.94%. If the company's cost of capital is 8%, anticipated growth rate is 5%, calculated indicated market price, if it is thinking of maintaining one as dividend per share, are the dividends growing? No, sir. No, sir. Perfect. Calculate. 33.33. Calculation very simple, sir. 1 will not increase divided by 3%. I guess 33.33. Any doubts? No, No. sir. Major students solve sum on retained earnings incorrectly in the test paper also. Next, Y Limited retains 7,50,000 out of its current earnings. The expected rate of return to the shareholders if they would have invested the funds elsewhere is how much percent? 10%. Brokerage rate is 3%. Shareholders come in 35% tax bracket. Calculate KR. Now KR as per formula is come on, KE KE 1 minus means 10% they must have a bracket, come on, 1 minus minus personal tax Personal income tax. tax. minus overall brokerage, meaning this is 10. 1 minus 0.35 is 6.5 minus brokerage of 3 gives you, come on, 3.5. 3.5. 3.5%. Understood? Yes, sir. Hello everyone. Another way to solve it is hold on, let's refer notes. Everyone. Just a second, referring notes. Perfect, sir. Perfect. It is income is 75,000. How did we get this income 75,000? Entire class? We invested, we invested 7,50,000 750 current. Yes. into 10%. 10% is our returns. 10%. Returns minus tax is net profit after tax. Calci 75,000 minus 35% is at 48,750. Yes. Brokerage is on investment amount. Is on which amount? Which amount? Investment amount. So brokerage is 3% of 750, 7,50,000.
into 3% gives you 22,500. So 48,750 minus 22,500 gives you 26,250. So our ultimate returns is 26,250 divided by 7,50,000%. It has to be 3.5%. Hello, everyone. Yes, sir. Next, calculation of cost of retained earnings. Whichever way you go, you get correct answers only. Next, question number 30, combined problem. Try this. Assuming corporate tax rate 35%, compute after tax cost of capital in the following situations. Perpetual means tax is not given. Redemption. Life is not Redemption. given, Life is not so it given. is Redemption value is not given. 15% debentures of 1,000 each, sold at a premium of 10%. Calci, please. 10%. 10%. Calci, please. 8.8. It is, I guess, interest is 150, everyone. 1 Yes, sir. minus Yes. 35% is 150 minus 35%. It comes to 97.5. 97.5. Premium 10% means 1100 divided by 1100 percentage, 8.886%. 8.86. Next, 10-year 14% debentures, 2000 redeemable at par, 5% flotation cost. You simply have to tell me interest figure is, come on, interest 280. figure. Entire class, just check. 280. Sure, 280. Net of interest is, come on, 280. Brackets 1 minus 0.35. Perfect. 182 Plus redemption value. Yes, 182. Redemption value, at par, so 2000. 2000. Minus net proceeds. Come on, 1900. 1900. Brilliant. Divided by 10 years. 10 year, Correct? 10. Whole divided by 2000 plus 1900 divided by 2. Any doubts? No, sir. No, Sir, Next, 10. flotation cost will be on market price, no? So, Perfect. हाँ With सर, that, यही डाउट हाँ पूछना था हाँ हाँ, ये कि है, ये हम है। अभी कॉस्ट पे गिनेंगे कि हाँ, मार्केट नहीं वैल्यू नहीं पे। नहीं नहीं, अभी अभी दोनों चीज था। इनिशियली आईसीआई डिड नॉट स्पेसिफाई एनीथिंग, तो हम लोग उसको फेस वैल्यू पे लेते थे। करंटली सभी कुछ उन्होंने ऐसे मॉड्यूल्स में लिख दिया है दैट इट इज ऑन मार्केट प्राइस इफ नथिंग इज स्पेसिफाइड। आने दो ना उस क्वेश्चन पे। ये फ्लोटेशन कॉस्ट बेटा आप किस पे मारोगे? आपका इशू प्राइस दिया ही करंट नहीं है। क्वेश्चन में तो 2000 ही होएगा ना। यस सर। अब भी जो आप पूछ रहे हो ना वो रेलेवेंट नहीं, वो आगे आएगा आगे आएगा आगे आएगा, हाँ डेफिनेटली सर। बताएंगे। अभी के लिए यस अभी सर। के लिए 5% फ्लोटेशन कॉस्ट किस पे मारेंगे? इश्यू प्राइस पे। इश्यू 2000 प्राइस तो पर। 2000 ही है, 2000. तो देन इट इज 1900 यस ओनली। सर। नेक्स्ट आगे आएगा, उसी के लिए वेट कर रहे हैं। बस वही एक सेंटेंस के लिए पहले चेकिंग तो कर लूं। 10 years हाँ सर। 14% preference shares 100 redeemable at 5% premium with 5% flotation cost। फिर से बोलो, इशू प्राइस क्या है? इशू प्राइस 100। 100, 100 पे फिर वो 10. 5% ही आएगा। हाँ सर। करेक्ट है। इशू प्राइस वो जो हम्म कंबाइंड क्वेश्चन थे उसकी बात बाद में करते हैं। नेक्स्ट, प्रेफरेंस डिविडेंड कितना वैल्यू? 14। 114 बोल तो चलेगा। 1 माइनस टैक्स हम्म 35%, नेट बोलो नेट। 14 माइनस 35% कितना होता नहीं है? सर. नहीं होएगा। रेडियन नहीं थैंक होगा। यू होगा, रश्मि, थैंक प्रेफरेंस यू। डिवीजन में टैक्स हाँ नहीं हाँ, होता। बराबर। नेक्स्ट, रिडम्पशन वैल्यू 5%। कमान कमान बोल के दिखाओ। प्रीमियम 105 105। प्लस नेट प्रोसीड्स बोल दो। 95। 95। माइनस Minus. 95 डिवाइडेड बाय एन 10 होल डिवाइडेड बाय 105 प्लस 95 डिवाइडेड बाय 2। एनी डाउट्स? नो 90. सर। 15%। इक्विटी शेयर सेलिंग एट 50। डिविडेंड परसेंटेज चाहिए नहीं, डिविडेंड 6 पर शेयर विच इज एक्सपेक्टेड टू कंटिन्यू इनडेफिनेटली। कुछ फिगर बोलो, बोल दो बेटा, बोल Growth दो 0. कितना परसेंट? ग्रोथ जीरो, वेरी गुड। क्या निकाल लोगे? के ई के 12%। ई 12% विच इज 12%। 6 डिवाइडेड बाय 50 इंटू 100। आई गेस 12% आ गया। Next, question number यस सर। 31. A company is coming out with 15% debentures of face value 100. Flotation cost is 2 per debenture. Return expected by the debenture holder is 17%. Find KD. एक सेकेंड, कुछ अजीब हो रहा है, पहले तो वो समझाओ क्या हो रहा है। सर कंपनी 15% दे रही है पर शेयर होल्डर का एक्सपेक्टेशन 17% है, इसलिए हम 17% पे फिर कैलकुलेट करते हैं।
इसीलिए सुनना ना, आपको चाहिए कितना? आप डिबेंचर होल्ड, मैं कंपनी, मैं डिबेंचर्स इशू कर रहा हूँ तो 15% रिटर्न देगा। बट आपको कितना चाहिए? बोलो। 17। 17%. 17%। तो क्या आप उसको 100 रुपए पे सब्सक्राइब करोगे? फर्स्ट क्वेश्चन। नो सर। नहीं करोगे ना? सो देन आप उसको कब सब्सक्राइब करोगे? जब मैं उसे डिस्काउंट पे इशू करूंगा। यस। बराबर। मीनिंग हाँ सर। मुझे 17 रुपीज चाहिए, मतलब आपको 17 रुपीज चाहिए 100 पे। बट हम्म। मेरा मेरा इंस्ट्रूमेंट आपको सिर्फ 15% ही दे पाएगा। तो आपके लिए वो इंस्ट्रूमेंट की वैल्यू 15 इंटू कम हो हंड्रेड गई। डिवाइड बाई 17 इज एटी एट एटी पॉइंट एट टू पॉइंट फोर टू फोर फोर। जनरली स्टूडेंट्स ये पर देखते ही नहीं है। हम्म। अच्छा, ऐसा कोई लाइन अभी तक पूरे क्वेश्चन में आया था? रिटर्न नहीं। एक्सपेक्टेड। अच्छा, अगर ये लाइन हटा दूं फिर तो क्वेश्चन नॉर्मल है ना सर? फिर तो क्वेश्चन नॉर्मल है। हाँ सर। बराबर। सो अंडरस्टैंड, अगर कभी डिबेंचर्स के रेट के साथ एक्सपेक्टेशन ऑफ डिबेंचर होल्डर्स आया, which means the debentures must be issued either at some discount or at some premium। अच्छा, नेक्स्ट क्वेश्चन चलो ट्राई कर लेते हैं तीनों। ये वाला तो समझा, 88.24 आ गया। तो ये हमारा इशू प्राइस हो गया, इशू प्राइस। तो अगर आप लोग को 17% रिटर्न चाहिए तो 15% पे मुझे उसको इशू करना पड़ेगा एट 88.24। क्या हाथ में 88.24 आएगा? बोलिए बेटा। नहीं, टू नो परसेंट तो सर। चला चला जाएगा। करेक्ट। कैलकुलेट केडी, निकालिए केडी, पूरा क्लास निकालिए। 12.17। यस सर। आया? सर यहाँ पे जो हम केडी में इंटरेस्ट लेंगे वो तो 50% ही लेंगे ना? 15% ही होगा ना, हम्म। आपका इंस्ट्रूमेंट तो 15% ही है। उस पर टैक्स रेट भी जाएगा बेटा। ये 115, यस 15 सर। माइनस 30%, सो इट इज टेन टेन पॉइंट पॉइंट फाइव फाइव मेरे को बोलो ना, हम लोग डेट कितने परसेंट, कितना कैसे कैलकुलेट करेंगे? केडी 10.5 आ गया। बराबर। 10.5 डिवाइडेड बाय आज मैं 88.24 लू क्या? बोलो। 86.24 डिवाइडेड बाय 86.24 परसेंटेज करेंगे। आई गेस 12.17 ही आ रहा है एवरी वन। हाँ सर। नेक्स्ट। वो माइनस नेक्स्ट। करके बताया। हाँ, वो माइनस करके बताया। ब्रिलियंट। अगर ये हाँ। 15% ही होता तो बोलो, 15% ही होता तो नॉर्मल। नॉर्मल। 15% ही उनको चाहिए, 15% ही डिबेंचर्स रेट दे रहे हैं। मींस ये पार पे इशू हो रहे होंगे। हेलो, ये हम्म। पार पे इशू होते होंगे। बराबर। नेक्स्ट, अगर मैंने 15% के बदले, बोलो 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 कुछ बोलो, यहाँ पे 12% ही कर दिया, बोलो उनका एक्सपेक्टेशन कितना परसेंट है? 12. 12%। 12%। 12। बट मेरा 12%. डिबेंचर्स कितना परसेंट देंगे? 15%। तो बोलो 15%. उनके लिए इसकी वैल्यू 100 से प्रीमियम कम है या 100 से ज्यादा है? 100 से ज्यादा होगा. 100 100 ज्यादा से से है। ज्यादा ज्यादा। है। 100 से ज्यादा है, तो मीनिंग सर 12%, 100, तो 15 कितना? चेक। कम वन ऑन। ट्वेंटी थ्री 1 to 5। वन वन टू टू फाइव फाइव होता है। माइनस टू 1 to 5 माइनस हाँ, टू 1 दैट to इज 5. 123 हो गया। अच्छा, होल ऑब्जेक्टिव ऐसा ना, हम्म। Yes. हमने आई गेस कैपिटल बजटिंग जाते जाते लास्ट में एक क्वेश्चन किया था। देखो जरा, देखो कैपिटल बजटिंग में वो एक क्वेश्चन किया था हमने, जिसमें हम लोग कुछ ऐसा कर रहे थे। आई डोंट, जस्ट अ सेकेंड। देखो ना, लास्ट में एक क्वेश्चन था। जस्ट अ सेक। हम्म, ये रहा। हाँ, आरबीएमएल, याद आएगा तो। 5 ईयर बॉन्ड है, कितना परसेंट देता है बेटा? 8%। बट इन्वेस्टर को चाहिए कितना परसेंट? 6%। बराबर। जाओ उसके सोल्यूशन पे जाओ। अगर बॉन्ड हमें 8% का रिटर्न दे रहा है, इन्वेस्टर को सिर्फ 6% चाहिए, मतलब इसके लिए इस बॉन्ड की वैल्यू 15% से ज्यादा है, 15% से कम है, 8%, मतलब 100 रुपए से ज्यादा है इसके लिए वैल्यू। मीन्स यहाँ पे आपका फेस वैल्यू 5000 है चाहे। हाँ।
बॉन्ड यस हाँ 8% रिटर्न दे रहा है, इसको 5000 से चाहिए ऊपर सिक्स आएगा। परसेंट ही, तो आपका जो भी वैल्यू है वो 5,000 से ज्यादा ही आएगा, याद आया? यस, यस सर। यस सर। परफेक्ट। नेक्स्ट आइए प्लीज, यस नेक्स्ट सर। क्वेश्चन नंबर 31 डन। क्वेश्चन नंबर 32 आएगा, ये तो बहुत इजी है सर। कॉस्ट ऑफ डेट, कंपोजिट यस डेट सर। इक्विटी मिक्स, हम्म। जो वो वाला ऑप्शन बेस्ट है, ये तो ट्रेडिशनल थियरी भी हो गया ना, वो वाला ऑप्शन बेस्ट है जहाँ पे आपका के ओ सबसे कम हो जाएगा। यस यस सर। नेक्स्ट, 4 टाइप्स ऑफ वेट्स जो पूरे चैप्टर में यूज करोगे, बोलते जाओ बोलते जाओ। बुक वैल्यू वेट्स, बुक मार्केट वैल्यू, वैल्यू मार्केट मार्केट वेट्स, वैल्यू, वैल्यू, टारगेट वेट्स, ट्रेडिशनल टारगेट वेट, मार ट्रेडिश मार्जिनल मार्जिनल कॉस्ट। वेट्स। मार्जिनल वेट्स विच इज कॉस्ट ऑफ या वेट्स ऑफ एक्स्ट्रा फंड्स बोल तो चलेगा, एडिशनल कॉस्ट ऑफ कैपिटल। Perfect. Next, हाँ यस from the सर। following information, calculate appropriate WACC, relevant information, long-term investment projects of the company. KE 18%. After-tax cost of long-term debt 8%. After-tax cost of short-term debt 9%. कुछ बोल दो पहले तो। शॉर्ट टर्म डेट शॉर्ट नहीं आएगा। शॉर्ट टर्म नहीं आएगा। हाँ। शॉर्ट टर्म नहीं आएगा। नेक्स्ट, अगर शॉर्ट टर्म नहीं आए तो बुक वैल्यू के हिसाब से ये वैल्यूज तो 9 लाख ही हो गई। आपके पास हम्म। आपका रिस्पेक्टिव कॉस्ट है, मार्केट वैल्यू आपको दिया हुआ है, कहने से क्वेश्चन खत्म। यस। यस हेलो, सर। मैं सॉल्व करूँ ये? नो नहीं सर। नहीं नो सर। सर नहीं। सर। नहीं नहीं नहीं। नेक्स्ट, क्वेश्चन नंबर 35। यस आइए प्लीज, बुक वैल्यू, मेजर बेस्ट क्वेश्चन यहीं से शुरू हो जाता है। इक्विटी शेयर्स ऑफ ₹100 ईच, क्यूमुलेटिव प्रेफरेंस शेयर्स दे दिया, 11% डिबेंचर्स, रिटेन अर्निंग्स आ गया। नेक्स्ट, द करंट मार्केट प्राइस ऑफ द कंपनी शेयर बोलते चाहिए इज 200। व्हाट इज 200? बोलो ना प्लीज 200 बोलो। पी पीओ। जीरो। P0, पी पी जीरो। last year जीरो। the P0। company had paid equity dividend of 25%। P0 तो आ गया सर डी 200। जीरो। D0 बताओ कितना कितना कितना? Yes, 25। 25। 25। फिफ्थ। 25% is always on which value? Is always on face value. फेस And if फेस वैल्यू। वैल्यू। dividend is 100। likely to grow at 5% per annum, means growth rate is 5%. Corporate tax rate हम्म। 30%. Shareholders personal income tax rate is 20%. Tell me KE KR same होगा? बोलो। नहीं। नहीं। नहीं नो। होगा। नहीं, तो पहले के ई कैलकुलेट कर लेते हैं। आइए प्लीज, के ई इज इक्वल्स टू, कम ऑन, के ई इज इक्वल्स टू डी डी वन वन अपॉन डी पी जीरो D1 प्लस अपॉन P0। 25 प्लस इंटू फाइव 100। परसेंट डिवाइडेड बाई P0 प्लस 0.05 इंटू 100, इज इट 18.125%? 18.125%। के आर बता दो ना प्लीज, के आर बता दो। इक्विटी 14.5। 14। 18.125 ही होना चाहिए, के ई के आर सेम ही होना चाहिए, बट पर्सनल इनकम टैक्स है तो ये माइनस करना होगा, 1 माइनस। 14.5। ब्रिलियंट सर, 14.5%। के आर और के ई हो गया। क्यूमुलेटिव शेयर्स का कॉस्ट बता दो, के पी बता दो, के पी कम ऑन, बोलो। 9%। 9%। हैज टू बी 9% ना सर। नेक्स्ट, के डी बता दो, चलो हैज टू बी 11 बोल दो। नो सर, क्योंकि 7.7। टैक्स है। टैक्स है तो बोलो ना, 11 माइनस 30%। 7.7। 7.7% आता है। चलो नेक्स्ट थिंग, बुक वैल्यूज के हिसाब से कैलकुलेट करेंगे तो 80 lakhs एट द रेट ऑफ 18.125, 40 lakhs एट द रेट ऑफ 14.5, ऐसे ही है ना? एक बार नोटबुक्स हम्म। ओपन कर लो, ऐसा ही है। नाइन हाँ। परसेंट 20 lakhs पे 9%, डिबेंचर 7.7%। मार्केट वैल्यू के टाइम पे रिटेन अर्निंग्स का कोई मार्केट वैल्यू नहीं लिखा, रीजन मिस हो गया, टाइपिंग एरर। क्यों? नहीं। नहीं सर, इक्विटी के साथ ही होगा। इक्विटी उसको के फिर साथ ही रेशियो होगा में तो, बट डिवाइड क्या करेंगे। केई के आर सेम है? केई के आर सेम है नहीं है तो डिवाइड करना होगा रेशियो में। इन द रेशियो ऑफ इक्विटी एंड रिटेन एंड अर्निंग्स, रिटेन अर्निंग। मतलब इन द रेशियो ऑफ 2:1 में डिवाइड करके रिस्पेक्टिव परसेंटेज, कोई डाउट? यस। नो सर। नेक्स्ट, क्वेश्चन नंबर 36, ये बहुत अच्छा क्वेश्चन। फ्लेमिंग लिमिटेड सर इज एक प्लानिंग। मिनट। हाँ बोलो सैम। सर एक डाउट था। सर हाँ बोलो क्वेश्चन सर। नंबर 35 में केपी 7.5 लिखा है, तो मैंने गलत लिखा है क्या? चेक बेटा, आई डोंट नो, मैं एक बार गो थ्रू कर हाँ लेता हूँ। सर। सेवन यस। पॉइंट फाइव हाँ 7.5। 7 सर। जस्ट अ सेकेंड नोट्स देख लेते हैं। आना नहीं चाहिए ना 7.5%, 7.5 ही आएगा। कॉस्ट ऑफ कैपिटल है, मार्केट वैल्यू पे लिया। मार्केट वैल्यू के लिए। हाँ सर, नेट प्रोसीड। मार्केट वैल्यू पे लेना चाहिए।
हेलो। हम्म, हेलो। नंबर ऑफ मार्केट। शेयर्स फाइंड किए पहले। हाँ, नंबर ऑफ शेयर्स फाइंड उ- किए, बराबर। हेलो। हाँ बराबर है, नंबर ऑफ ये शेयर्स फाइंड किए तो उससे पी जीरो आ गया ना। आपका फॉर्मूला क्या है? प्रेफरेंस डिविडेंड अपॉन नेट प्रोसीड्स। करेक्ट। नेट प्रोसीड्स हाँ इज सर। इश्यू प्राइस माइनस फ्लोटेशन कॉस्ट। करेक्ट, यस। इनटू 100। हम्म Preference dividend, everyone agrees 9% on 100 is 9 only. यस बोलो आज क्या मार्केट प्राइस है? हेलो। है। हाँ, यस निकालेंगे, सर। कैसे निकालेंगे? थ्रू 20 lakhs डिवाइडेड बाय एवरी शेयर 100, सो 20,000 शेयर्स। 24 lakhs डिवाइडेड बाय 20,000 शेयर्स, आपका हर शेयर का इश्यू प्राइस बोल दो, फ्लोटेशन कॉस्ट बोल दो, या करंट मार्केट प्राइस पी जीरो बोल दो। पी जीरो वन बोल दो। ट्वेंटी 120, सो 9 डिवाइड बाय 120%, ये 7.5 आएगा। अब आपको समझा यस। आपका के डी भी गलत हो गया है। हाँ सर, 7.7 आएगा। हाँ तो एक सर सेकेंड, फिर ये स्पेसिफिकली ये सब में क्यों किया है ऐसे? ये सम में क्यों मार्केट। किया है ऐसे? अच्छा, सिर्फ इसी सम में ऐसा हुआ है? मैं पूछ रहा हूँ, ये सम में सर अगर आप बोल। जिसमें हाँ बोलो। जिसमें मार्केट वैल्यू रहता है तो फिर ये ऐसे ही होगा ना। मार्केट हाँ वैल्यू हाँ, होगा तभी तो मार्केट वैल्यू को ही तो। बेस लेना है बाय डिफॉल्ट। अगर याद हाँ। होगा तो क्वेश्चन ने कुछ भी नहीं बोला, तो वी ऑलवेज टेक मार्केट वैल्यू एज अ बेस। इनफैक्ट जब कैपिटल यस। यस। स्ट्रक्चर थियरी भी कर रहे थे हम लोग ने, देखो ना, कैलकुलेशन ऑफ वैक यूजिंग मार्केट वैल्यू वेट्स ही लिया था, पी जीरो इंटू नंबर ऑफ इक्विटी शेयर्स। बराबर। हेलो। यस सर। हाँ यस। सर। यस नेक्स्ट, तो सर। आज मेरे को फिर यस। से फॉर्मूला हाँ बोलो। के डी आपका 11%, 60 lakhs पे, तो आई गेस 60 lakhs इंटू 11%, पहले तो 6,60,000 आता है। स्ट्रेट अवे इसमें से 30% माइनस कर दो, -30%, तो आपका 4,62,000 आता है। बट ये 4,62,000 इज ऑन 66 lakhs, नो प्राइस प्राइस। तो मेरे को कितने यस। डिबेंचर है मुझे नहीं पता, तो मैं टोटल टोटल खेल लेता हूँ। याद आया कुछ हाँ। क्वेश्चन जैसे भी करते थे। यस सर। डिवाइडेड बाय सिक्सटी यस सर। सिक्स लैक्स परसेंटेज 7%। बेटा, इट इज 7%। इट इज सेवन यस। परसेंट हेलो पूरा क्लास अंडरस्टूड? हेलो बोलो ना यस बेटा, सर। बोलो ना। समझ गया? यस सर। तो एक सेकेंड, हम लोग ने जो इवेल्युएट कर लिया इसी के, तो इस मूव पे हम लोग ने बुक वैल्यू को ही बेच ले लिया, तो क्या मिस्टेक हो गया? अगर मार्केट वैल्यू दिया है तो मार्केट वैल्यू पे ही बेच लेंगे। नेक्स्ट, अब बोलो इसी क्वेश्चन में बेटा जी, अगर मैं फ्लोटेशन कॉस्ट डाल दूं 2%, क्या ना इसे लाइफ में बहुत बड़ा प्रॉब्लम हो जाएगा? फ्लोटेशन कॉस्ट हम्म। लू इस पे, क्वेश्चन ने तो कुछ नहीं बोला 2%, तो आज फेस वैल्यू पे लूंगा। तो प्रेफरेंस का फेस वैल्यू इज 100। प्रेफरेंस का इशू प्राइस बेटा जी 120 है। सिर्फ 2% बोला तो करूँ क्या? एज मॉड्यूल्स। चलो सर, फ्लोटेशन कॉस्ट न्यू इशू है, ये फ्लोटेशन कॉस्ट इज अराइव, इसका इज एडजस्टेड टू अराइव एट नेट प्रोसीड फॉर द कैलकुलेशन ऑफ कॉस्ट ऑफ कैपिटल। नेक्स्ट, इसका एक नोट भी था, शायद हम लोग ने डिस्कस भी किया था, याद आता है क्लास में, हाँ कि सर। अगर ऐसा कुछ हुआ तो हम लोग को ऐसा कुछ करना है। amortization ऑफ द बॉन्ड, फ्लोटेशन कॉस्ट आएगा आएगा, जस्ट अ मिनट। हाँ, इफ इशू प्राइस इज नॉट गिवन, then students can assume it to be equal to, come on, करंट issue मार्केट price, प्राइस। current करंट market मार्केट। price। अगर करंट मार्केट प्राइस अज्यूम कर लिया इशू प्राइस को, तो फ्लोटेशन कॉस्ट इज ऑलवेज ऑन इशू प्राइस। यस सर। परफेक्ट नो? नेक्स्ट, सिर्फ इधर ही नहीं लिखा है, हर जगह इस पूरे सिलेबस में नेट प्रोसीड्स मींस इशू प्राइस माइनस इशू एक्सपेंसेस ऑफ फ्लोटेशन कॉस्ट। इफ इशू प्राइस इज नॉट गिवन वी कैन assume it to be equal to the current market price. If issue prices are not given, then simply issue expenses are not given, then simply assume it to be zero. Hello, any यस सर। doubts? Entire class, any doubts? जाऊं आगे? एवरीवन। यस। नेक्स्ट, एक सर बार ये पर हो गया। यहाँ पे इशू प्राइस और मार्केट वैल्यू सेम नहीं है ना। इशू प्राइस मार्केट वैल्यू सेम ही हो गया ना यहाँ पे, क्योंकि कोई फ्लोटेशन कॉस्ट नहीं दिया ना।
ओके। करेक्ट, मैं वही कह रहा हूँ, अगर फ्लोटेशन हाँ कॉस्ट सर। दे दे तो देन हम लोग जनरली क्या अज्यूम करते थे, हम फेस वैल्यू पे ले लेते थे। बट करंटली आईसीआई टेक्स एवरीथिंग ऑन इशू प्राइस। तो फिर अगर मान लो मैं 2% देता हूँ ना, आपका इशू प्राइस 120 है, तो आपने अभी अभी केपी कैसे कैलकुलेट किया, 9 डिवाइडेड बाय 120 किया ना, तो फिर वो 120 माइनस 2% होगा। नॉर्मली जो हम लोग प्रीवियसली अज्यूम करते थे वो फेस वैल्यू पे ही मार देते थे 2%। याद आया कुछ? हाँ सर समझा। परफेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 35 डन। क्वेश्चन 36, यस। फ्लेमिंग लिमिटेड इज प्लानिंग एन इक्विटी इशू इन द करंट ईयर। कर दिया या सोच रहे हैं? कम ऑन। सोच रहे नहीं हैं। कर सोच रहे हैं। प्लानिंग। ईपीएस 25 है, डिविडेंड पर शेयर 15 है एट द एंड ऑफ करंट ईयर, या ऑलरेडी पेड? पे एट द हो एंड गया। ऑफ का नहीं नहीं, पे प्रपोजेस। करेंगे। पे करेंगे। टू पे, प्रपोजेस टू पे। प्रपोजेस। बराबर, तो ये आपका D1 जैसा कुछ हो T1 गया। होगा। नेक्स्ट, with P ratio of 8, it wants to offer the issue at come on, इशू बोलो। एट मार्केट मार्केट प्राइस। मार्केट प्राइस पे इशू करना है। द फ्लोटेशन कॉस्ट इज एक्सपेक्टेड टू बी 10% ऑफ द इशू प्राइस। बोल दिया क्वेश्चन ने। कैलकुलेट रिक्वायर्ड रेट ऑफ रिटर्न फॉर इक्विटी शेयर्स, कॉस्ट ऑफ इक्विटी बिफोर इशू आफ्टर इशू। कैलसी लीजिए, बिफोर इशू कैलकुलेट करिए प्लीज। के ई पूछा ना, के ई बिफोर इशू, बिफोर इशू। लेट्स सी करेक्ट आता है क्या बच्चों। 20.83। फर्स्ट आंसर आया बेटा, 20.83। नेक्स्ट, 7.5। 7.5। ह्यूज डिफरेंस इन द आंसर्स, ह्यूज डिफरेंस। बोलो आगे बोलो, यस कम ऑन स्पीक बेटा, बात करो ना मुझसे। कैसे करें सॉल्व? स्ट्राइक हो रहा है कि नहीं हो रहा है, पहले तो ये बताओ। यस सर। क्या किया बताओ। फिर पी 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 रेशियो से रेशियो चालू करेंगे हाँ, तो तो एक तो मार्केट सेकंड, प्राइस एमपीएस आ मिलेगा। जाएगा। पीई रेशियो से स्टार्ट करते हैं। तो इट इज एमपीएस अपॉन एमपीएस ईपीएस। अपॉन यस यस सर। ईपीएस तो 25 है, पीई रेशियो 8 है, तो सबको एमपीएस, एमपीएस 200 आ गया, 200। 200। तो यस अच्छा, सर। यही यस सर। हमारा P0 हो जाएगा। चलो, एमपीएस आ गया 200, अब आगे क्या करोगे? तो सर एमपीएस D1 दिया है। D1 दिया है हमें, तो के ही चाहिए। के इज D1 अपॉन P0 D0। प्लस ग्रोथ इंटू 100। बराबर, यस सर। D1 आपको दे दिया 15, P0 आपके पास 200 है, ग्रोथ कहाँ से लाऊं? जीरो। ग्रोथ सर जीरो ले ढूंढना लूं। पड़ेगा। एक सेकेंड, अंडरस्टैंड। ग्रोथ जीरो कब लेते हैं? रोहित बात करो मुझसे। हमने कमाया 25 रुपीज, क्या हमने पूरा हम्म। 25 इक्विटी शेयर होल्डर्स को दे दिया? नहीं नहीं। सर। नो सर। तो 15 ही उसमें दिया से है। कितना दिया? 15 दिया। एक 15 रुपए भी दिया। हाँ। कम दिया तो आपने अपने पास कुछ तो रखा, कुछ रखा, यस। हाँ। उसको इन्वेस्ट करोगे तो का ग्रोथ तो होगा ना सर। यस। यस सर। हाँ सर। याद आया यस। कुछ? यस सर। यस। यस। तो यस सर। हाँ, नेक्स्ट नेक्स्ट, एक सेकेंड कैलकुलेट एक करना सेकेंड। पड़ेगा। मेरे को डिविडेंड, हाँ हाँ हाँ, डिविडेंड पे आउट रेशियो का फॉर्मूला बोलो। डिविडेंड पे आउट रेशियो इज डीपीएस अपॉन अपन ईपीएस ईपीएस इंटू अपॉन 100। इंटू परसेंट 100। इंटू। कैलसी लीजिए प्लीज, कैलसी लीजिए।
आप 15 रुपीज का डिविडेंड दोगे, आप कमा कितना रहे हो 25, तो आपका डिविडेंड पे आउट रेशियो 60%। 60% हो गया। 60%। डिविडेंड पे आउट रेशियो इज 60%, बात करिए प्लीज। इफ डिविडेंड पे आउट रेशियो इज 60%, Retention रिटेंशन ratio इज will be 40%। 40%. रिटेंशन रेशियो इज 40%। अच्छा, थोड़ा हेल्प हो गया, स्ट्राइक नहीं हुआ। ग्रोथ इज इक्वल्स टू बी इंटू आर। Into our बी स्टैंड्स फॉर रिटेंशन रेशियो। retention ratio 40. रिटेंशन रेशियो 40% है, मुझे नहीं पता आप क्या करते हो। आर ढूंढो, आर ढूंढो। यस, कम ऑन, लेट्स सी। जो स्ट्राइक हुआ वो करते गए, आंसर्स क्या आता है, लेट्स सी। सर 12.5 कैसे आया? EPS अपन मार्केट प्राइस हमने ढूंढा, 200 हाँ, इंटू 100। 200 इंटू 100, 100 कहाँ से आया? रिटेंशन मतलब रिटर्न ऑन इक्विटी किया। रिटर्न ऑन इक्विटी है कि इधर, वही तो पूछा है। So हाँ बोलो। ग्रोथ का जो दूसरा फॉर्मूला है, EPS माइनस DPS अपॉन PO इंटू 100। ऐसा कोई फॉर्मूला है? वो यस फॉर्मूला नहीं, वो डेरिवेशन में आया था हाँ, लास्ट। हाँ, मुझे नहीं पता, आप तो बस सॉल्व करना सिखा दो, जो डेरिवेशन में आया वो तो आपको आता ही होगा। बोलो कुछ। 5% सर। 5% पूरा क्लास, लेट्स सी। डेरिवेशन सर से। P रेशियो से PO आ जाएगा। ये रहा सर, ग्रोथ लकी अस। इट इज ईपीएस माइनस बीपीएस अपॉन बुक वैल्यू पर शेयर, विच इज नथिंग बट P0 इंटू 100। तो ग्रोथ यस इज सर। इक्वल्स टू बी इंटू आर बिफोर इशू। सब कुछ है, सब कुछ। आपने बोला 200 बराबर है। ग्रोथ रेट निकालने के लिए इस क्वेश्चन में फॉर्मूला है, दैट इज ईपीएस माइनस डीपीएस माइनस अपॉन पी DPS जीरो। अपॉन 0। 5% आ गया। अब बोलो, अब तो आ जाएगा के। कमान बच्चों, कमान, के ई बोल ही दो, आप तो बोल दो। 15 बाय 200। 12.5। अच्छा, ये 12.5%। जो आपने के ई 12.5 बोला है, बिफोर इशू बोला है, आफ्टर इशू बोला है? बिफोर बिफोर इशू। बिफोर इशू। इशू। हाँ, आप आफ्टर इशू में क्या ऐसा स्पेशल कर दोगे, बोलो। क्या ऐसा स्पेशल कर दोगे? रोटेशन कॉस्ट फ्लोटेशन कॉस्ट माइनस फ्लोटेशन कर देंगे। कॉस्ट कितना परसेंट? 10% ऑफ इशू प्राइस ऐड कर दोगे, 10% करो ऐड फटाफट, कम ऑन। माइनस करेंगे। माइनस करेंगे। हाँ तो आंसर 180। आंसर 180, तो 15 डिवाइड बाय 180 प्लस 5 प्लस 105 इंटू एक 100। ग्रोथ भी चेंज हो गई। हाँ ग्रोथ थोड़ी चेंज होगा। सर, वो बुक वैल्यू चेंज हो जाएगा ना। चेंज हो जाएगा, तो लॉजिकली आज आपका ग्रोथ भी चेंज होना चाहिए। सो फर्स्ट थिंग यस। सर, ये 180 हो गया, तो ग्रोथ में आज नेट प्रोसीड्स आ जाएगा। याद आया, सबसे इंपॉर्टेंट, यस। ग्रोथ यस सर। चेंज होगा। ग्रोथ चेंज हो गया। अब आप जो निकालोगे वो बाय डिफॉल्ट ही करेक्ट होएगा। सो अगर डैश चेंज हुआ तो डैश चेंज हो जाएगा, बोलो। नेट प्रोसेस। जो चेंज हुआ फ्लोटेशन चेंज कॉस्ट, हुआ तो तो ग्रोथ फिर ग्रोथ चेंज हो ग्रोथ चेंज भी जाएगा। चेंज होगा। ग्रोथ चेंज हो जाएगा ऑटोमेटिकली, के ही चेंज हो जाएगा। नेक्स्ट यस। क्वेश्चन नंबर 37, जाऊं जाऊं बच्चों, क्वेश्चन 37। हाँ सर। हाँ सर। From the following capital structure of XYZ Limited, determine the appropriate WACC using book value and market value weights. Equity shares 10, 1 lakh shares 10 lakhs. Retained earnings 15 lakhs. Preference shares, debentures, bank loan long term. आगे बोलो क्या कर दो? कैंसर। कट कर। कैंसिल हाँ, कर दो। बैंक Equity लोन shares include the existing 60,000 shares having a current market price of 40 per share. 40। इंक्लूड 60,000 शेयर जिसका मार्केट प्राइस 40 पर शेयर है, एंड बैलेंस इज नेट प्रोसीड्स फ्रॉम द न्यू करंट ईयर इशू प्राइस ऑफ 40 एक शेयर। बराबर है ये सब? इशू प्राइस हाँ। ऑफ यस 40, फ्लोटेशन कॉस्ट इज 5, प्रोजेक्टेड ईपीएस एंड डीपीएस ऑफ द करंट ईयर आर दिस इन दिस रिस्पेक्टिवली। क्या निकाल लोगे इस ग्रोथ। 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 ग्रुप? अच्छा, एक सेकेंड। इन्होंने ये जो वैल्यूज दी है
ये बुक वैल्यू है, ये जो वैल्यू है ये बुक वैल्यू है या ये मार्केट वैल्यू है? ट्राई। बुक वैल्यू। बुक बुक वैल्यू। ये बुक वैल्यू। हाँ। मार्केट वैल्यू कैसे निकालते हैं वो हमें आता है सर। नेक्स्ट आगे, डिविडेंड इंडिकेटेड ऑन द प्रेफरेंस शेयर्स इज हाउ मच परसेंट बेटा? 16%। प्री टैक्स कॉस्ट ऑफ डिवेंचर्स 15.5%। इंटरेस्ट ऑन लॉन्ग टर्म लोन 15%। शॉर्ट टर्म एक्चुअली इग्नोर्ड। कॉर्पोरेट टैक्स एट 35%। मार्केट वैल्यू ऑफ प्रेफरेंस शेयर्स दे दिया 8,50,000। चलो सबसे पहले बोलो क्या निकालना चाहते हो, जो भी आप बोलो, जो भी आप बोलो, कमा। के ग्रोथ रेट। के के ई निकालता है। चलो तो के ई पूरा क्लास, के ई इज इक्वल टू D1 अपॉन P0 प्लस P ग्रोथ zero इंटू 100। plus growth into 100. हम्म। चलो D1 बता दो, D1 कितना? 5. 5। 5 पक्का 5? तो इधर 5 लिख दिया। यस। हाँ। नेक्स्ट P0, P0 35. 35। 35. 35। श्योर 40 35? minus 5. Yes. 40 माइनस 5 Yes. 35 प्लस ग्रोथ बता दो, ग्रोथ। Calculate. वो ढूंढना पड़ेगा। हाँ ढूंढो ढूंढो, ग्रोथ रेट। 8.5714। 8.57. इतना गंदा परसेंट आ रहा है। 7.5%। हाँ सर। 7.5 की 8.57? 8.57. 8.57। मेरे को बताओ क्या क्या है। ईपीएस तो 8 है, माइनस डीपीएस 5, तो 3 आ गया न्यूमरेटर, डिवाइडेड बाय नेट प्रोसीड्स का डिवाइड भी बाई कि इशू प्राइस। 35। 40 ले लो प्लीज। Net proceed. नहीं नहीं लेंगे। Net proceeds लेंगे. नेट प्रोसीड्स ही लेंगे तो डिवाइड बाय 35%, 8.5% आता है। तो 0.0857 जैसा कुछ इंटू 100। Yes. चेक करता है, पहले चेक करता है। 5 डिवाइड बाय 35 प्लस 0.857 इंटू 100, इज इट 22.86%? Yes. यस सर। अच्छा एक बार चेक कर लेते हैं ताकि हम लोग बराबर जा रहे हैं ना, चेक कर लेते हैं। 22.86 आता है। सो क्या मिस्टेक हो गया अदर स्टूडेंट से बोलेंगे प्लीज? जब भी आप ग्रोथ रेट लोगे, अभी अभी बिफोर इशू आफ्टर इशू फ्लोटेशन कॉस्ट दिया है तो वो हमेशा नेट ही प्रोसीड्स होना चाहिए, वो कभी भी डैश नहीं होगा। कम ऑन, इशू प्राइस नहीं होगा। इश्यू प्राइस नहीं होगा। नेक्स्ट आगे बोलिए, आगे बोलिए, नेक्स्ट वाला। के ई થઈ ગયો सर, के ई થઈ ગયો, वो 22.86% है। अच्छा के ई के आर सेम होगा, चेक कर लो। क्या के ई के नहीं, आर सेम होगा? फ्लोटेशन कॉस्ट दिया है. ओहो, फ्लोटेशन कॉस्ट दिया है। चलो के आर निकालो, निकालो के आर, लेट्स सी आप लोग बराबर करते हो क्या। के आर निकाल लो। के आर कितना होता है? आज मेरे को बता दो ना, D1 कितना, सिर्फ कैलकुलेशंस बता दो ना। D1 5, 5. पी यस पी सर। P0 40। 40। ग्रोथ रेट 8.57 ले लो प्लीज। नहीं लेंगे, 7.5. काउंट करेंगे। फाइन कर लो. 7.5 तो 7.5 0.075। अच्छा फाइन कैसे करेंगे? 3 डिवाइडेड बाय 40%। 3 इज 8 इंटू माइनस 5 100। डिवाइड इंटू 100 आ गया ये। इंटू 100 कर दो प्लीज। हम्म. बोलो। 20%. 20%। 20% आता है। तो चलो सर नेक्स्ट वाला के आर भी आ गया। के आर आपको 20% आ गया। नेक्स्ट कहानी, कमान। के आर થઈ ગયો। नेक्स्ट इज प्रेफरेंसेस। केपी। प्रेफरेंसेस 16%। बोल दो, इसका तो आंसर बहुत इजी है, बोलो 16% ही रहेगा। नहीं हेलो, सर, मार्केट वैल्यू नीचे मार्केट दिया है वैल्यू। 8,50,000। ब्रिलियंट क्वेश्चन। 35 37 लिंक हो पा रहा है। सिक्सटीन हाँ Yes. सर। परसेंट आप हमेशा फेस वैल्यू पे मारोगे तो 8 lakhs इंटू सिक्सटीन Into परसेंट 16%. आपको 1,28,000 आता है। 1 lakh 1,28,000 तो आप 28,000. 8 लाख से डिवाइड नहीं करोगे, 850 से डिवाइड 8, करोगे, विच इज 850. मार्केट प्राइस ओनली, डिवाइडेड बाई 850%। 15.06। 15.06% आता है। एक सेकेंड, लेट Yes. अस क्रॉस चेक। 15.06 एवरीवन, 15.06। चलो केपी થઈ ગયો। नेक्स्ट नेक्स्ट कम ऑन। डी। बोलो। डिबेंचर्स डिबेंचर्स कम ऑन, Debentures. डिबेंचर्स। 15.5 माइनस 35%। 10.075%। 0.75%। अच्छा काश इसका Yes. भी मार्केट वैल्यू दे दिया होता, मजा ही आ जाता सर, मजा ही। सर नेक्स्ट बराबर के एल बोल दो, के एल। 9.75. 9.7। 9.75%।
9.75 आता है, कोई डाउट? तो एक बार गो थ्रू कर लेते नो हैं। सर। नेक्स्ट आपका के डी आया 10.075, के एल 9.75%। बुक वैल्यू वेट्स लोगे तो एग्जैक्टली exactly वही वेट्स ले लेना जो क्वेश्चन ने दिया है। रिस्पेक्टिव क्रॉस मल्टीप्लीकेशन, बस मेरे को मार्केट वैल्यू बता दो ना, मार्केट वैल्यू कैसे निकाल, बस मेरे को मार्केट वैल्यूज निकालना सिखा दो, मेरा काम खत्म। मार्केट वैल्यू, यस, बोलो वैल्यू, व्हाट सर इनटू व्हाट? इक्विटी शेयर 1 लाख है इंटू इनटू इश्यू मार्केट प्राइस प्राइस 40 है। 40। 40, तो एक सेकेंड, तो ये 40 lakhs हो गया। अच्छा, हाँ, मैं क्या और तो इसको वही 40 रहने इक्विटी दूं और या रिटर्न स्प्लिट कर, अर्निंग का होगा, स्प्लिट करेंगे। स्प्लिट करेंगे इन द रेशियो ऑफ 2:3। बुक 10:15 वैल्यू 2:3, दैट इज 10:15। तो चलो 10:15 वैल्यूज Yes. बोल दो प्लीज। 16 lakhs 16 lakh 24. 24। 16 lakhs, 24 lakhs आया, तो Yes. रिस्पेक्टिव कॉस्ट के साथ वो मल्टीप्लाई हो जाएगा। नेक्स्ट प्रेफरेंस शेयर्स हम्म बोलो, प्रेफरेंस शेयर्स। 850 8 lakhs दिया है दिया हुआ 8 लाख है। 50। डिबेंचर्स बोल दो प्लीज। 50 lakhs. 50 वही लाख रहेगा। ही रहेगा। कोई डाउट है? बैंक लोन भी 80 लाख। हाँ। कोई डाउट है? No, नो sir. सर। नेक्स्ट मूविंग फर्दर, three companies A, B, and C, similar type of business, and hence have similar operating risk. एक बात बोलूं, जब तक आप एक सम सॉल्व नहीं करोगे ना, ये सारे क्वेश्चंस, आई गेस आपको क्रक्स मिल नहीं पाएगा। मैं जितना ज्यादा बता दूंगा ना, एक्चुअली क्वेश्चन उतना ज्यादा इजी हो जाएगा। बोलो, यू याद आता है मैंने कुछ क्वेश्चंस के बाद ना सारे क्वेश्चंस आप पे छोड़ दिए थे, वो याद है? यस हम्म सर। याद है सब कुछ? हाँ हाँ सर। सर। थोड़ा हेल्प कर देते हैं, चलो, डोंट वरी डोंट वरी, कहीं जाना नहीं है मुझे। Three companies A, B, and C are in similar type of business and have similar operating risk. However, capital structure of each of them is different, and there are the following details. Equity share capital बेटा 4 lakhs है, इधर 250 है, इधर 5 lakhs है। मार्केट प्राइस पर शेयर दे दिया, फेस वैल्यू दे दिया, डिविडेंड पर शेयर दे दिया, डिबेंचर्स फेस वैल्यू पर डिबेंचर इज 100, तो ये वैल्यूज दे दिया, मार्केट प्राइस पर डिबेंचर, इंटरेस्ट रेट दिया। Assume that the current levels of dividends are generally expected to continue indefinitely, means that there is growth zero. growth zero, Zero income growth. tax rate 15%, compute WACC for ABC। चलो फर्स्ट कंपनी ए का बात करते हैं। ए में इक्विटी है, इक्विटी, Yes, हम्म sir. ये सिर्फ इक्विटी है, डिबेंचर्स तो है ही नहीं। तो इसका हाँ सर। के ओ इज इक्वल्स टू के ई ओनली। कैलसी, हम्म Yes. कैलसी, कैलसी। 18%. 18% आता है। यस सर, वैक 18%। वैक वैक हो गया, हम लोग ने ग्रोथ ऐड नहीं किया बेटा, ग्रोथ जीरो। Zero है। जीरो, इनडेफिनेटली। ग्रोथ का इंफॉर्मेशन भी नहीं है। नेक्स्ट बी के लिए के ई निकालिए प्लीज, के ई निकालिए। 20%. 20% कैसे, क्या फटाफट, 4 डिवाइडेड बाय 4 20, डिवाइड बाई 20 इंटू 100। 20%। के डी बोलो ना, के डी कैसे आएगा? लाइफ दिया क्या, लाइफ लाइफ दिया, लाइफ नहीं sir. नहीं दिया है, तो फिर वो इंटरेस्ट 1 - टैक्स अपॉन नेट प्रोसीड्स इनटू 100 हो जाएगा। कम 4%. 4%, इतना कम? जनरली इतना कम आना तो नहीं चाहिए। 4%। कैसे क्या, चलो अब दो स्टूडेंट्स को आ गया तो शायद करेक्ट हो सकता है। 1 लाख पे 10% या 100 पे 10%। 100 पे 10%. 10 हो गया, 10 - 50%, तो आई गेस ये 5 हो गया। 5 डिवाइडेड बाय, कम ऑन, किससे डिवाइड करूँ? 125. 125. नेट 125। प्रोस्टिट्यूट्स। कुछ फ्लोटेशन कॉस्ट है, फ्लोटेशन कॉस्ट नहीं सर, इनटू 100, नहीं नहीं है। दिस है। इज 4%। वैक 4%. कैसे यस निकालोगे? सर। इस केस में वैक कैसे निकालोगे? वैक मार्केट वैल्यू, बुक वैल्यू? मार्केट मार्केट वैल्यू। वैल्यू. मार्केट मार्केट वैल्यू। वैल्यू। तो चलो चलो, मेरे को मार्केट वैल्यू ऑफ इक्विटी बोल दो, इक्विटी का मार्केट वैल्यू बोल दो। 50 lakhs।
ऑब्वियसली रॉन्ग बेटा, ये इक्विटी 5 शेयर lakhs. कैपिटल है, इसमें फेस वैल्यू 10 है, तो ये हाँ 5 लाख होता है, क्योंकि 25,000 शेयर्स इंटू ट्वेंटी इंटू फाइव 20 इंटू 5 lakhs. 5 lakhs. 25 नेक्स्ट lakhs डिबेंचर्स और का 1 lakh मार्केट वैल्यू 25,000 1,25,000 है, देखो 1 lakh 25, हाँ कैसे किया सर, 1000 फेस यस सर. अल्टीमेट इंटू 1,000 into 125. 125। नेक्स्ट वाला करूँ कि Yes. कर लोगे, पूरा क्लास कर कर लेंगे लेंगे. सर. कर कर लेंगे। लेंगे. नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 39, आइए प्लीज। गोल्ड मेडल विच इज टू डिटरमाइन द वेटेड एवरेज कॉस्ट ऑफ कैपिटल फॉर इवैल्यूएटिंग कैपिटल बजटिंग प्रोजेक्ट्स, तो उनको चाहिए वैक। यू हैव बीन सप्लाइड विद द फॉलोइंग इन्फॉर्मेशन टू कैलकुलेट द वैल्यू ऑफ केओ फॉर द कंपनी। सो इन शॉर्ट केओ पूछा है, सन्ड्री एसेट्स, करंट लाइबिलिटीज, डिबेंचर्स, प्रेफरेंस शेयर्स, इक्विटी शेयर्स, रिटेन अर्निंग्स। बोलो क्या नहीं हो सकता इधर, Current liabilities and करंट real. लाइबिलिटीज नहीं हो सकता। एंटिसिपेटेड एक्सटर्नल फाइनेंसिंग इन्फॉर्मेशन, 20 years 8% डिबेंचर्स, फेस वैल्यू दे दिया, रिडीमेबल एट 5% प्रीमियम, सोल्ड एट पार, 2% फ्लोटेशन कॉस्ट। ऐसा कुछ बोला, 2% फ्लोटेशन कॉस्ट किस पे मारू? हेलो? नहीं. नहीं नहीं, नहीं. अच्छा, हमें कोई मार्केट वैल्यू पर डिबेंचर या पर ऐसा कुछ दिया है, मार्केट वैल्यू नहीं दिया ऐसा है. कुछ नहीं. नहीं दिया है, तो No. फिर तो बाय डिफॉल्ट ये फेस वैल्यू पे ही आना चाहिए, इशू प्राइस पे. हाँ फेस इशू वैल्यू पे. प्राइस पे। फेस हाँ, वैल्यू पर ही आएगा। फेस वैल्यू पे आएगा, एक सेकंड, फेस वैल्यू पे आएगा अगर इशू प्राइस और फेस वैल्यू सेम हुआ तो। अगर उन्होंने 5% प्रीमियम पे इशू कर दिया, तो मैं तो जो फ्लोटेशन कॉस्ट मारूंगा वो तो फॉर श्योर, कम ऑन, इशू प्राइस पे मारूंगा। हाँ. यस Yes. सिंपल। सर. एक होता है फेस वैल्यू। आज तक हम लोग जो भी फ्लोटेशन कॉस्ट अगर क्वेश्चन नहीं बोलता था तो इसी पे मार देते थे। हेलो हेलो? नेक्स्ट, इसी पे यस मार सर. देते थे। हम्म। नेक्स्ट, आज क्या होगा, फेस वैल्यू जो भी हो, हमारे लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट क्या है, इशू प्राइस। आईसीआई क्या कहता है, आप मान लो इशू प्राइस, अगर क्वेश्चन ने कुछ नहीं बोला, इट इज इक्वल्स टू करंट मार्केट प्राइस मींस एमपीएस, एंड फ्लोटेशन कॉस्ट फिर इशू प्राइस पे मारना। हेलो? Yes, sir. यस सर. बराबर। नेक्स्ट, पूरा क्लास फिर से जस्ट चेक, 20 years 8% डिबेंचर्स ऑफ फेस वैल्यू 2500, redeemable at 5% प्रीमियम, सोल्ड एट, हो शिट, सोल्ड एट पार। तो अगर इशू प्राइस पार है तो वो फेस वैल्यू ही हो गया। मैं फेस वैल्यू पे नहीं मार रहा, मैं इशू प्राइस पे मार रहा हूँ, समझ गया? वो 2500। Yes, sir. यस सर. कोई डाउट? नो सर. नेक्स्ट, सॉल्व करूँ कि आ जाएगा? आ आ जाएगा जाएगा। सर. आ जाएगा। नेक्स्ट, 10% प्रेफरेंस शेयर, सेल प्राइस 100 पर शेयर, 2% फ्लोटेशन कॉस्ट। ओ शिट, इन्होंने सेल प्राइस के बदले अगर 100 रुपए के बदले कुछ और फिगर दिया होता ना, तो वो इशू प्राइस हो जाता, तो मैं उस पे फ्लोटेशन हाँ कॉस्ट मार देता। इजी। हाँ. यस नेक्स्ट सर. आया इजी, अब पूरा क्लास इजी। सेल प्राइस 115 पर शेयर, फ्लोटेशन कॉस्ट विल बी 5 पर शेयर। तो अब 5 पर हम्म। शेयर दे दिया, शिट 5% देते तो मैं 115 पे मारता। यस सर, समझो। कोई डाउट? पूरा क्लास कोई डाउट? कॉर्पोरेट टैक्स रेट नो सर. 35%, एक्सपेक्टेड डिविडेंड ग्रोथ रेट 5%, एक्सपेक्टेड डिविडेंड एट द एंड ऑफ द फाइनेंशियल ईयर इज 11। आई गेस के ही 11. कैलकुलेशन तो हो जाएगा। मेरे लिए सबसे Yes. इंपॉर्टेंट ये लाइन है, बस मेरे को ये बता दो इसका मतलब। सर मतलब जो प्रेजेंट कैपिटल स्ट्रक्चर है उसके ही रेशियो में हम नए जो भी हाँ, मतलब है इधर मार्केट Target. वैल्यू मत कैलकुलेट कर देना, मीनिंग बुक वैल्यू पे ही टारगेट. इनका करेंगे। इनका इक्विटी 12 lakhs है ना, तो चुपचाप 12 पे, बिकॉज दे वांट टू हाँ। मेंटेन दिस कैपिटल स्ट्रक्चर। प्लीज Yes. इसमें यस। मार्केट वैल्यू, लास्ट क्वेश्चन में ऐसा कुछ नहीं बोला है, तो देखो ना, सबका मार्केट वैल्यू निकाल रहे हो, उसके लास्ट क्वेश्चन में भी ऐसा कुछ नहीं बोला है, तो मार्केट वैल्यू पे ही ले रहे हो। हेलो? बात Yes. करो Sir. बेटा यस जी। सर. परफेक्ट, तो एक सेकंड, मैं नोट्स एक बार रेफर ही कर लेता हूँ। आई गेस ये तो हो गया सर, ये हो गया। नेक्स्ट, हाँ, के डी के पी ये सब कुछ आ गया। हाँ, ओफो, कैपिटल एज प्रेजेंट कैपिटल स्ट्रक्चर, कंपनी इंटेंस company wants to maintain, company wants to maintain its present capital structure and intends to maintain it, means they are not interested in market movements and therefore calculate WACC on balance sheet slash book value figures. These are nothing but target weights which the company wants to maintain. Please bolo samjha? Yes.
नेक्स्ट सर, क्वेश्चन नंबर 40 आइए प्लीज। क्वेश्चन नंबर 40, एमोनो लिमिटेड हैज अ फॉलोइंग बुक वैल्यू कैपिटल स्ट्रक्चर। थैंक यू। क्वेश्चन बुक वैल्यू आपने दे दिया, इक्विटी शेयर्स है, प्रेफरेंस शेयर्स है, रिटेन अर्निंग्स है, डिबेंचर्स है, टर्म लोन्स है। द नेक्स्ट एक्सपेक्टेड डिविडेंड ऑन द कंपनी शेयर इज 3.6। कुछ बोल दो, कुछ बोल दो। D1 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 हो गया। डिविडेंड इज एक्सपेक्टेड टू ग्रो एट 7% पर annum। कुछ बोलो आगे, कुछ growth बोलो। rate. ग्रोथ ग्रोथ, Growth rate. ग्रोथ रेट 7% हो गया। मार्केट प्राइस ऑफ द कंपनी शेयर इज 40। कम ऑन। P0 P0 P0। प्रेफर्ड स्टॉक ऑफ द कंपनी, प्रेफर्ड स्टॉक मींस Preference stock. Preference प्रेफरेंस share. शेयर preference stocks, irredeemable after 10 years and is selling price at 75 per share. 75 75. per share. Debentures are redeemable after 6 years, selling price is 80, tax rate 40%. Calculate WACC using book value and market value weights. Hold. आराम से निकालेंगे के, एवरीवन के ही Yes निकालेंगे। sir. बोल दो कमान। 16%. 16%. 16% आ गया। नेक्स्ट, क्या के ई के आर Yes सेम sir. है? क्या के ई के आर सेम है? Yes, sir. Yes sir. हाँ रीजन सर। फ्लोटेशन कॉस्ट नहीं है, पर्सनल इनकम टैक्स नहीं है, तो के आर भी 16% हो गया। नेक्स्ट, प्रेफरेंस शेयर्स पकड़ो, क्या पकड़ो प्रेफरेंस शेयर्स को। प्रेफर्ड स्टॉक आफ्टर 10 years सेलिंग एट 75 पर शेयर। करंटली उसका इशू प्राइस 75 है। कुछ फ्लोटेशन कॉस्ट दिया है बच्चों, दिया है फ्लोटेशन कॉस्ट? नहीं नहीं सर. दिया। 11% ऑन 100 इज 11 प्लस रिडम्शन वैल्यू कुछ नहीं बोला, तो बाय डिफॉल्ट फेस वैल्यू पे रिडीम करेंगे। 100. -75 डिवाइडेड बाय हाउ मेनी इयर्स, 10 years 10 years. डिवाइडेड बाय 100 प्लस 15.43. 75 डिवाइडेड बाय 2। कम ऑन, कितना कितना? 15.42. 15.43. 15.43 पक्का प्रॉमिस? हाँ. Yes. डिबेंचर्स का लाइफ 6 years है सर। शुरू हो जाओ, के डी बता दो, के डी। डिबेंचर्स का लाइफ 6 years, 6 years 13.5%। कैलसी सर 13.5% ऑन 100, 13.5 माइनस 40%, 8.1 आता है। 8.1 प्लस आपका इशू प्राइस, तो रिडम्शन वैल्यू 81 प्लस प्लस 100 माइनस, बोलो प्लीज बोलो, 80 डिवाइडेड बाय 6 years 3.33. is 100 plus 80 divided by 2। 12.703. 12 पॉइंट क्या बोला? 703. 12.703%। नेक्स्ट के एल बोलिए, के एल कम ऑन। सीधा 9. 40%, 9% आया। 9%। एक सेकेंड जस्ट Yes क्रॉस चेक sir. कर लेते हैं। 40th 16%। हाँ 15.43 बोला था आपने, केपी चेक 15.43 बोला था। Yes sir. हाँ परफेक्ट है। नेक्स्ट फिर आपका के डी अभी अभी 12.7, 12.71. 12.71 आया बराबर। नेक्स्ट उसके बाद आपका के एल तो 9% ही आएगा। वैक बोलिए, वैक। आज वैक निकालने के लिए आपको बुक वैल्यू तो आई गेस इजी है, वो तो दिया है। मार्केट वैल्यू हेल्प करो ना प्लीज, मार्केट वैल्यू बता दो। टेल मी मार्केट वैल्यू। इक्विटी एंड रिटेन्ड अर्निंग का दोनों मिला के 60 करोड़ रुपीस. ब्रिलियंट, हाँ दैट इज 60 60। करोड़ कैसे आया सर? 10 1.5 करोड़ इंटू 40, 60 करोड़। नेक्स्ट into आगे। 40. हाँ इंटू और 40, यस। प्रेफरेंस शेयर का 75 lakhs. 75 lakhs अगर करोड़ में लिखा है तो फिर ये 0.75 करोड़ है। 0.75. करोड़। नेक्स्ट डिबेंचर्स 8 करोड़. 8 करोड़, 8 ब्रिलियंट। crores. टर्म लोन्स तो 12.5 करोड़ ही होगा। 12.5. एक बार हाँ Yes. क्रॉस 12.5. क्रॉस क्रॉस चेक कर लेते हैं, एक सेकेंड। चलो हो गया। हाँ हम्म, सर. क्या हो गया? प्रेफरेंस शेयर. प्रेफरेंस, प्रेफरेंस 0.75 ही है। अरे ये दो मिला के हाँ सर. 60 है बेटा, कंफ्यूज नहीं होना। ये दो मिला हाँ के हाँ. 60 है। यस ब्रेकअप सर. कर दिया, जरूरत था क्या ब्रेकअप का बताओ? नहीं सर। नहीं. रेट सेम है तो ब्रेकअप का जरूरत नहीं है। फिर 0.75, फिर 8, फिर 12.5 हो जाएगा। हेलो। यस सर. Yes sir. नेक्स्ट आ जाओ ना सर, इसी के लिए तो एक क्वेश्चन बनाया था। डिटरमाइन द वेटेड एवरेज marginal cost of capital schedule of the company if the company raises 10 crore next year given the following information: amount is raised by equity and debt in बोलो बोलो, In Equal. equal proportion.
थोड़ा सा हेल्प करो ना, 10 करोड़ चाहिए, 10 करोड़ 5 करोड़। इक्वल 5 5 प्रोपोर्शन crore, ऑफ करोड़ 5. 5 करोड़, 5 करोड़, थोड़ा हेल्प और हेल्प और हेल्प, कंपनी एक्सटेंड्स टू रिटेन 1.5 करोड़ एज अर्निंग्स नेक्स्ट ईयर। तो अगर ये तो इक्विटी है रिजर्व 1.5 हो जाएगा और तो रिटेन 3.5 अर्निंग्स इक्विटी 1.5 न्यू। करोड़, फ्रेश इशू ऐसे कह दो 3.5 करोड़ हो जाएगा। अच्छा, जो यस। रिटेन अर्निंग्स है इसका तो के ई के आर सेम ही होने वाला है, बट जो फ्रेश इशू है उसका के ई फ्रेश कंप्यूट करना पड़ेगा, प्रोवाइडेड फ्लोटेशन कॉस्ट इज देयर और नॉट। नेक्स्ट, एडिशनल इशू ऑफ इक्विटी शेयर विल रिजल्ट इन नेट प्रोसीड्स ऑफ 32 पर शेयर। देखो नया इन्फॉर्मेशन आ गया। पहले करंट मार्केट प्राइस तो 40 है ना बेटा, बट अगर हम लोग यस और एडिशनल शेयर इशू करेंगे तो हमें नेट हाथ में सिर्फ 32 ही आना है। तो बोलो क्या मेरा के ई चेंज हो जाएगा फ्रेश इशू में? बोलो क्या मेरा यस क्लेम? यस। नेक्स्ट, डेट कैपिटल रेज्ड वाया टर्म लोन्स विल कॉस्ट 15% फॉर फर्स्ट 2.5 करोड़, 16% फॉर नेक्स्ट 2.5 करोड़। आई गेस आपका कुछ चार्ट ऐसे बनता है। एक सेकंड, चार्ट बने ही नहीं है इधर। हाँ, एक सेकंड, जाओ जरा नोट्स में जाओ, एक बार जाओ, शायद वो पेज स्किप हो गया होगा। जाइए जाइए, ये रहा शिव। नहीं नहीं नहीं, चार्ट मिस हो गया, जाइए जाइए। है, ये रहा सर। हाँ सर। मिला मिला, परफेक्ट सबको। हाँ अब मैं रिस्पेक्टिव रिस्पेक्टिव बोलो कैलकुलेशन करूंगा। के ई के आर फर्स्ट केस में 16% था ना, तो ये तो 16 ही हाँ। रहेगा। नेक्स्ट, फ्रेश कम ऑन आज मेरा डीपीएस कि डीपीएस तो 3.6 है। 3.6 को थर्टी डिवाइड टू बाय 32 प्लस ग्रोथ रेट चेंज होएगा क्या? 18.25। ग्रोथ रेट चेंज होएगा? नहीं। नहीं चेंज होएगा। बराबर, अगर ग्रोथ रेट नहीं चेंज होएगा, पहले का ग्रोथ रेट 7% है, तो प्लस 0.07 इंटू 100, इज इट 18.25? यस सर। आ रहा है, चेक करो नोट्स में, चेक करो, सेम है सब कुछ सेम। हाँ सर। यस सर। बराबर। नेक्स्ट, फर्स्ट 2.5 करोड़ के लिए 15% है, उसका टैक्स रेट माइनस कर देंगे। नेक्स्ट 16% टैक्स रेट माइनस कर देंगे, वैक निकाल लोगे। ये एडिशनल यस फंड सर। है, इसका ही वेट्स है, इसी का परसेंटेज कॉस्ट है, अल्टीमेट के वो आ जाएगा। किसी को अगर समझना है कैसे क्या सर, ये रहा सर। 2 लाख 3 लाख वो आगे वाले क्वेश्चन में आएगा, तो बैलेंस ऐसा। एक बार वो आ गया आपके पास, अपना वैक है, अमाउंट है, वेट्स है, कॉस्ट आ जाएगा, अल्टीमेटली क्वेश्चन खत्म। एक सेपरेट ही क्वेश्चन होता है, बराबर। क्वेश्चन नंबर 41, आइए प्लीज, क्वेश्चन 41, इक्विटी शेयर होल्डर्स हैव अ फंड ऑफ, बोलो बोलो, 1 लाख, आरओई 20%, डिविडेंड पे आउट रेशियो 40%, ग्रोथ रेट बता दो बच्चों। सर 12%। हाउ सिंपल सर, ये तो आर दे दिया 60 आपने। इंटू 20%। रिटेंशन हाँ। रेशियो 80%, 60% क्योंकि पे आउट है, तो आर इंटू 20 इंटू 60% आएगा, 12% ग्रोथ रेट आ गया। नेक्स्ट, X Limited has shares of rupees 10 each. Current market price is 24. Dividend paid for the last 4 years 1, 1.1, 1.21, 1.331. बोलो इससे क्या निकाल सकते हो? ग्रोथ। Growth. ग्रोथ। कैलसी ले लो, सारे को कैलकुलेट करोगे या सिर्फ एक से ही आ जाएगा? एक से एक आ से आ जाएगा। जाएगा। 10%। 10%. 10%। 10% है। हाँ बोलो, हाँ मार्केट प्राइस है D1, नेक्स्ट वाला D1 बोलो कितना आएगा, नेक्स्ट वाला D1? 1.46 1.4641 आया, डिवाइडेड बाय 24। P0 24 प्लस 0.1 इंटू 100, के ही बोल दो प्लीज। 16.10। 16.10. 16.10। 16.10%। नेक्स्ट वाला यस। क्वेश्चन, आई गेस ये इजीली सॉल्व हो जाएगा। डिटेल्स, एक्स लिमिटेड इक्विटी शेयर्स एग्जिस्टिंग 10 ईच, पास्ट 5 years, फेस वैल्यू 10 है। बोल दो फटाक से, देख के बोल दो, कैलसी छूना नहीं, ग्रोथ रेट इज 5%। 5%. 5%। 5%। 5% आता है। करंट मार्केट प्राइस 40 है, तो ये P0 हो गया। कंपनी इज प्लानिंग टू इशू न्यू इक्विटी शेयर्स ऑफ रुपीज 10 ईच एट अ फ्लोटेशन कॉस्ट ऑफ 5। बोलो ना, नेट प्रोसीड बोल ही दो। 35। Calculate KE of the existing shares and that of the new shares. KE existing shares में बोलो नेट प्रोसीड्स ले लूं, KE नहीं। existing shares में नेट प्रोसीड्स ले लूं, P0। नहीं ना। हाँ P0, तो KE इज इक्वल्स टू D1 अपॉन P0 प्लस ग्रोथ इनटू 100। मेरे को आंसर चाहिए, कम ऑन KE एग्जिस्टिंग बता दो, एग्जिस्टिंग बता दो। 8.2. 8.20। 8.20। 8.20 KE। आप KE न्यू शेयर्स का बता दो, KE न्यू शेयर्स बता दो, न्यू शेयर्स। यस,
8.67 8.66%। 8.66%। तो 8.20 बेटा जी, 8.66%। कोई शक है? हेलो? नो सर। नो सर कोई नो डाउट? सर। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर नो सर। 44। आइए प्लीज, वाई लिमिटेड, इधर से आपके लाइफ का सारा डाउट क्लियर हो जाएगा। एज द फॉलोइंग बुक वैल्यू कैपिटल स्ट्रक्चर, आई गेस इक्विटी शेयर्स देखते हैं, देखते हैं, हर क्वेश्चन में कुछ भी अज्यूम नहीं करना। इक्विटी शेयर्स 40 lakhs, प्रेफरेंस शेयर्स दिस मच, डिबेंचर्स ये आ गए 80 lakhs। नेक्स्ट, द इक्विटी हाँ शेयर्स ऑफ द कंपनी इज सेलिंग एट 20 मतलब कि क्या ले लूं, क्या ले लूं? P0। P0, very good, very good. In the last 5 years, dividend has increased from this to this. कुछ बोलो। And 1.905 represents last paid dividend, तो ये बेचारा तो D0 हो गया। मुझे नहीं पता आप क्या लेते हो, कल से उठा लो, कुछ तो कर दो, मेरे को ग्रोथ रेट चाहिए, ग्रोथ रेट। ये हो गया इन लास्ट 5 years, तो 5% ऐड करते जाना है। 1.4924 प्लस, एक बार 5% लो, 5% की 6 लो कि 10 लो, बोलो आप जो बोलते हो। 5 फाइव हाँ, क्योंकि परसेंट हमें 5 तो याद हो है इसका जाएगा। 5% ही आता है। प्लस 5% यस। प्लस 5% प्लस 5% प्लस 5% प्लस 5%। कितने स्मार्ट हो ना आप लोग, याद है तो फिर करने की ही जरूरत क्यों है? अभी मैं नया नंबर देता हूँ, मेरे को नहीं अच्छा लगा, आपको डायरेक्ट याद आ गया, अब मैं रुक जाओ, अभी एक सेकंड रुक जाओ। 1.4924, इट इज 2.192193, इट इज 2.193। चलो कोई स्मार्ट इंसान है तो बोल दो ना, 5% से कम या सेवन 5% परसेंट से ज्यादा? 5% सर से एट ज्यादा कम? परसेंट 5% से कम या 5% से ज्यादा, पहले वो तो बात करो। ज्यादा ज्यादा होगा। ज्यादा होगा क्यों ज्यादा होएगा वो बताओ। तो ये तो 1.905 से ज्यादा हुआ। ये तो आप लोग को एफएम समझ में आ रहा हो, मैं तो चीटिंग भी नहीं करता। चलो चलो, आंसर बोल दो फास्ट। रश्मि एट नहीं है बेटा, सेवन परसेंट 7%। परसेंट 7% 8% सर। नहीं है, क्या सी? 1.4924 प्लस 7% प्लस 7% प्लस 7% प्लस 7% प्लस 7%, इट इज 2.093। रश्मि, मैंने 193 लिखा है। आंखें खोलो, चलो कुछ नया ओके सीखने मिल गया भाई। फ्लो, कम ऑन, वेलकम टू तो सब्जेक्ट वंस अगेन। इट इज 2.093, करके देखो सब लोग, 7% से करके देखो, ये आता है 2.093। हाँ। 8% से 2.193, यस हाँ सर। सर। द ग्रोथ रेट बीइंग कांस्टेंट, पक्का प्रॉमिस, हाँ याद रहेगा? रश्मि, यस सिली एरर्स नहीं, अब प्लीज ये टाइम नहीं, प्लीज कुछ भी नहीं। ग्रोथ रेट बीइंग हाँ कांस्टेंट एवरी ईयर, कॉर्पोरेट टैक्स 35%, याद रखना, सुनना बच्चों। एक रिक्वेस्ट है, हर सम में ना हाफ मिनट एक्स्ट्रा ले लेना, समझा क्यों? ज्यादा घाई से क्या, आई गेस पूरे सम्स रॉन्ग हो जाएंगे। एंड आफ्टर रिविजन बोलो ना, इस सब्जेक्ट में 40+ तो इजी है ना बेटा। यस सर। यस यस सर नेक्स्ट नेक्स्ट, के ई हमें के ई निकालो ना बेटा, के ई तो निकाले ही नहीं हम लोग। निकालो निकालो, के ई कितना परसेंट आता है? D1/P0 प्लस ग्रोथ इंटू 100। 5% था ना? सर 15%। 15% 15% एग्जैक्ट आता है कि? यस यस सर सर। नेक्स्ट, वैक हम्म। आपको चाहिए बेस्ड ऑन एग्जिस्टिंग कैपिटल स्ट्रक्चर, तो सिर्फ के ई से काम हो जाएगा? नहीं नहीं नहीं। केपी बोलो, केपी एपीकेडी बोलो, केपी बोल दो, जल्दी बोल दो। 11.5%। 5%। नेक्स्ट, के डी बता दो, बता दो। 6.5 6.5, आज हेल्पलेस है, आई गेस यही आंसर आएंगे। वैक निकाल लोगे? एग्जिस्टिंग कैपिटल स्ट्रक्चर हाँ हम्म। मीन सर। जैसे कह दो बुक वैल्यूज ही हो गया, बुक हाँ वैल्यू दिया। बुक वैल्यू हम्म। Next, compute the new WACC. If the company raises additional 20 lakhs debt by issuing 12% debentures, this will result in increasing equity dividend to 2.4 and leaving the growth rate. So sorry, unchanged, but the price of equity share will fall to 16। क्या क्या बोल दिया, करके दिखाओ। If the company raises additional debt by issuing 12% debentures, increasing equity dividend
टू 2.4, ग्रोथ रेट वही रहेगा, प्राइस 16 हो जाएगा। सर के 20%। हाँ यही 20% आता है। कैसे किया? फर्स्ट हाँ फर्स्ट बताओ, 2.4 डिवाइडेड सर, बाई 2.4 2.4 डिवाइड बाय डिवाइड बाय 16 16। और ग्रोथ 16, रिमेन सेम, सो 5%। 5%। ठीक है, तो ये तो आपका के तो 20% आ गया, बराबर। हाँ तो अभी ऊपर जो जो भी था के आपका, आई गेस 15% था, वो फ्रेश फ्रेश हाँ। 20% हो जाएगा। केपी को तो हम्म टच किया ही नहीं, तो ये 11.5% ही रहेगा। ये वाला केडी हम्म तो इशू हुआ ही नहीं है, तो ये वाला तो 6.5% ही रहेगा। हाँ, नया नया फ्रेश एंड फ्रेश बोल दो। अब इसका रेट क्या होगा? 7.8। 7.8 कैलकुलेटेड एज 12 माइनस 35%, तो आई गेस ये 7.8 हो जाएगा। हेलो पूरा क्लास, हाँ 7.8 हो गया यस। आपका, आंसर्स तो आ जाएगा। नेक्स्ट, कमेंट ऑन द यूज ऑफ वेट्स एंड वैक। ठीक है, थियरी क्वेश्चन डन। पूरा क्लास, जाऊं आगे। क्वेश्चन हाँ नंबर सर। यस 45। हाँ, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। इसमें बस ये वाले सेंटेंसेस कुछ ज्यादा इंपॉर्टेंट है। मार्जिनल कॉस्ट ऑफ कैपिटल व्हेन नो न्यू शेयर्स आर इशूड, हाउ मच कैन बी स्पेंड फॉर कैपिटल इन्वेस्टमेंट, एक्सीड्स। परफेक्ट, सेम डिट्टो क्वेश्चन। हेलो, यस सर। चलिए स्टार्ट करते हैं। एबीसी हैज द फॉलोइंग कैपिटल स्ट्रक्चर एंड इज कंसिडर्ड टू बी कंसिडर्ड टू बी ऑप्टिमम। थैंक यू। ऑप्टिमम। जो मर्जी हो जाए, यही आपका टारगेट वेट्स होगा। मींस टारगेट लाइफ कैपिटल में स्ट्रक्चर। कभी, यस, टारगेट कैपिटल स्ट्रक्चर, लाइफ में कभी 1 रुपए भी रेस करना है तो भी वो इसी रेशियो में रेस होएगा। 1 रुपए भी हाँ। रेस करना है तो मीन्स इट हम्म इज 0.8, 0.05, 0.15। सर आप तो याद करके आए हो। नहीं 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 बेटा, ये 2 lakhs है ना, तो 2 लाख को 1, तो ये 16 8 हो जाएगा, 10 5 हो जाएगा, 30 15 हो जाएगा, डिवाइड किया है। अच्छा, वैसे नहीं समझता है तो ये 100 ले लो बेटा। ये 100 है तो ये 80 हो जाएगा, ये 5 फाइव एंड हो जाएगा 15। और ये 15 हो जाएगा। मतलब जब भी लाइफ में फंड रेज करना है, आपको इसी रेशियो में रेज करना है। ये चेंज नहीं हो सकता। पूरे क्वेश्चन में ये वर्ड इतना ज्यादा इंपॉर्टेंट है। दिस गिव्स यू अ क्वेश्चन ऑन टारगेट वेट्स। नेक्स्ट, आगे यस सर, द सर। कंपनी शेयर प्राइस, शेयर कंपनी हैज अ मार्केट प्राइस ऑफ 23.60, ऐसे कह दो P0। नेक्स्ट ईयर डिविडेंड हम्म कैलसी लीजिए प्लीज। नेक्स्ट ईयर का डिविडेंड इज 50% ऑफ 2022 ईपीएस। हमारे पास 2022 ईपीएस है, बताइए। नेक्स्ट ईयर्स डिविडेंड D1 विल बी, बोलो। 1.18। 1.18। 1.18 आता है। द फॉलोइंग इज द ट्रेंड ऑफ ईपीएस फॉर द प्रीसीडिंग 10 years, कंटिन्यू टू एक्सपेक्टेड टू कंटिन्यू इन फ्यूचर। इससे क्या मिल गया बोल दो? ग्रोथ। ग्रोथ। ग्रोथ कितना परसेंट सर? 10%। द कंपनी कंपनी 10%। perfect है, the company issued new debentures 16% rate, current market price 96, preference shares 9.2, annual dividend this much, issued, tax rate कर लोगे ये। यस। यस सर। यस marginal cost of capital when no new shares are issued, तो वही आपके पास कॉस्ट है। मार्जिनल कॉस्ट मतलब वही वेट्स ले लेंगे, उसी पे आ जाएगा। हेलो प्लीज, यस सर। कोई डाउट? मार्जिनल कॉस्ट वैक, नो सर। इजी। नेक्स्ट, बस मेरे को जो सिखाना है, हाउ मच कैन बी स्पेंड फॉर कैपिटल इन्वेस्टमेंट बिफोर न्यू ऑर्डिनरी शेयर्स मस्ट बी सोल्ड। तो एक सेकेंड, क्या हमारे पास कुछ रिटेन अर्निंग्स है? बोलो। हाँ। assuming retained earnings for the next year investment are 50% of, बोलो बोलो बोलो, 2022। आपने बांटा कितना है सर? 50%, डिविडेंड इज 50%। तो कितना परसेंट रिटेन हो गया? 1.18, 50% रिटेन हो गया। फिफ्टी आपके पास परसेंट है रिटर्न। कितने शेयर? शेयर्स कितने हैं बोलिए? शेयर्स 10,000। सो 10,000 शेयर्स, 10,000। तो इंटू 10,000, सो आपके पास 11,800 है, ऑलरेडी है, बराबर। यस। ये क्या है? रिटेन अर्निंग्स है। रिटेन अर्निंग्स फॉर्म पार्ट ऑफ इक्विटी, एंड इक्विटी। इक्विटी फॉर द करंट क्वेश्चन इज 80%। सो इफ 80% रिप्रेजेंट्स 11,800, कैलसी प्लीज, कितना पैसा है कंपनी के पास बिफोर एनी न्यू कैपिटल शेयर्स, बिफोर एनी न्यू इक्विटी शेयर्स मस्ट बी इशू, 14,750। डिवाइडेड बाय 80%, 14,750। इट इज 14,750। कोई डाउट? इससे ज्यादा पैसा चाहिए, 14,750 से भी ज्यादा पैसा चाहिए, तो अब पैसा कहाँ से आएगा वो बताओ ना। और पैसा चाहिए, इक्विटी मैं शेयर बोलता हूँ। इशू करके। इक्विटी शेयर इशू करके, वही नेक्स्ट क्वेश्चन है। व्हाट विल बी द मार्जिनल कॉस्ट ऑफ कैपिटल व्हेन फंड्स एक्सीड द अमाउंट कैलकुलेटेड इन पार्ट सी। तो 14,500 से भी ज्यादा चाहिए, तो अब तो इक्विटी शेयर इशू करना पड़ेगा।
इक्विटी शेयर इशू करोगे तो आपका प्रेजेंट प्राइस कितना था बेटा? 23.6। नया प्राइस कितना हो जाएगा? 20। आई गेस फिर से आपको के ही कैलकुलेट करके सारा कैलकुलेशंस करना होगा। कोई डाउट? नो सर। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 46 स्टार्ट कर दूं बेटा? यस। यस। बस अल्टीमेट अल्टीमेट क्वेश्चन। You are required to determine WACC using book value and market value weights based on the following information. Ordinary shares, preference shares, debentures, ultimate value 20 lakhs. ये book value हो गया. All securities are traded in capital market. Market prices दे दिया. So debentures 100, preference shares 120, equity 22. Flotation cost लिख दिया 5%. पहले क्या सिखाया था वो जाने दो. आज वो उसी को हम लोग इशू प्राइस पे ले लेंगे. इनफैक्ट हम लोग ने क्वेश्चन है 46 या किसी तो एक क्वेश्चन में ऐसा नोट भी लिखा था. 46 ही था शायद, 47 था, एक नोट था. हाँ ये रहा. In this problem, flotation cost is given for equity, preference and debt. Therefore, in all the formulas, we'll take net proceeds. Flotation cost है तो net proceed लेना होगा. बोलो हाँ या ना? हाँ सर। यस सर। For equity, it is always implied that the issue is at market price. But for preference and debt, there are two options. ऐसा theory लिखाया था. First is issue at face value, which ICI used to assume. Now issue is at market price, which is ICI currently presuming. So on and so forth. Hello. यस सर। Next, जाऊं आगे. Anticipated external financing opportunities are as follows: 100 per debenture, redeemable at par, sale price. प्लीज ये क्वेश्चन सॉल्व करोगे तो आई गेस आप लोग को आंसर्स आएगा. कुछ डिस्कशन होएगा. वी कैन कीप इट. हेलो. ये सब यस सर। पेपर में भी आया था। हाँ इनफैक्ट मैंने कभी क्वेश्चन 46 47 सॉल्व किया था कभी? नहीं नहीं। 40 सर। 49 बोलो. हाँ आप फिर गॉर्डन का फॉर्मूला डिराइव किए थे. ट्रू वर्थ ऑफ अ शेयर, इंट्रिंसिक वैल्यू, एक्चुअल प्राइस ऑफ द शेयर. याद आया? इनफैक्ट ये दोनों क्वेश्चंस भी तो सारे हो ही चुके हैं जो हम लोग ने. यस सर। उसका ग्रोथ डिविडेंड पॉलिसी हो चुका है ना बेटा? तो शेयर हाँ होल्डर्स सर। एक्सपेक्टिंग रिटर्न, बाय द शेयर और सेल द शेयर. 40 से कम आया तो बाय कर लेना, 40 से ज्यादा आया तो बाय मत करना. नेक्स्ट रिटर्न्स, इट इज अवेलेबल, बाय करोगे या नहीं करोगे. रिटर्न 4th ईयर तक कांस्टेंट होता है. कोई शक बच्चों? नहीं। नो सर। पूरा क्लास कोई डाउट रहेगा प्लीज आस्क. श्योर. सो हमारा डिस्कशन एथिकली 46 से लेके, बोलो 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 प्लीज, 53 तक. मेरे को सच में बोलो ना, कुछ डिस्कशन बचा है? नहीं सर। नहीं लिटरली बोलूं, हाँ बचा है. कैसे सर? क्वेश्चन 56 ना कॉस्ट ऑफ कैपिटल था. अब बस आप मेरे को ये बता देना. कंपनी इशू 10,000 10% डिबेंचर्स ऑफ ₹100 ईच ऑन फर्स्ट डे, मैच्योर्ड ऑन दिस डेट. कंपनी वांट्स टू नो कॉस्ट ऑफ, क्या लिखा? कॉस्ट ऑफ एग्जिस्टिंग डेट. एग्जिस्टिंग डेट मतलब इनिशियल डेट की अभी अभी जो इशू किया, या इस डेट पे चाहिए? बोलो जानवी कमान. हेलो. हेलो. एग्जिस्टिंग। यस बोलो ना. मैं स्लोली पढ़ता हूँ, चलो आगे. कंपनी इशू 10,000 10% डिबेंचर्स ऑफ ₹100 each at par on 1st of April 2012 to be matured on 1st April 2022. The company wants to know the cost of existing debt. So बेटा जी क्वेश्चन इज कॉस्ट ऑफ एग्जिस्टिंग डेट या ओरिजिनल डेट? मैंने दोनों सिखाया. एग्जिस्टिंग डेट। एग्जिस्टिंग डेट ऑन एग्जिस्टिंग डेट। 1st April 2017 जब उसका मार्केट प्राइस ₹80 है. कंप्यूट यस सर। कॉस्ट ऑफ एग्जिस्टिंग डिबेंचर्स अज्यूमिंग टैक्स रेट कितना परसेंट? 35%। 35। 35%. अच्छा इसको हम लोग ने आईआरआर मेथड से भी किया है. इसको हम लोग ने एंड अप्रोक्सीमेशन. अप्रोक्सीमेशन से भी। आईआरआर मेथड से डिबेंचर्स गया. अभी एग्जिस्टिंग डिबेंचर आपको ₹80 देगा तो आपका प्रेजेंट वैल्यू ऑफ कैश इनफ्लो 80 हो गया. हेलो. यस सर। आउटफ्लोस यस को सर। ऐसे रेट से डिस्काउंट करना है. ऐसा रेट मतलब वो केडी होगा. आउटफ्लो क्या हो गया सर? 10% ऑन इंटरेस्ट 100 6.5। इज 10. इंटरेस्ट रेट 35%, तो हर साल का -0.35. आउटफ्लो 6.5 6.5. 2018 19 20 21 22 फिर आप लास्ट डे पे कुछ नहीं बोला तो 6.5 रिडम्पशन रिडेम्पशन वैल्यू 100 ऐड करोगे. 100।
फिर इसको यस ऐसे सर। रेट से डिस्काउंट करो, आईआरआर आएगा, सबका आंसर आएगा। पहले आईआरआर नहीं करना, स्मार्टली पहले केडी का अप्रोक्सीमेशन। अप्रोक्सीमेशन मेथड अप्लाई करके कर लेना। अच्छा, कॉस्ट ऑफ ओरिजिनल डेट बोलता, यू अग्री मेरे लिए ये इररिलेवेंट हो जाता। परफेक्ट। नेक्स्ट एक सम है बेटा, जीरो कूपन बॉन्ड्स। ये जीरो कूपन बॉन्ड्स होगा, मतलब आज आप कंपनी इशू करेगी, कितने पे इशू करिए, 2500, आपको 1 लाख रुपीज मिलेगा एट द एंड ऑफ, बोलो, 25 ईयर्स। क्या ये अप्रोक्सीमेशन मेथड से हो सकता है? नहीं नो सर। सर। नहीं। आईआरआर से ही करना होगा, डिफरेंट डिफरेंट रेट्स लेके करना, आंसर आ जाएगा। आरबीएमएल 5 ईयर एमोटाइज्ड इक्वली, तो एक सेकेंड, पहला ईयर 5,000 पे 8% मीन 400 आएगा, प्लस एमोटाइज्ड इक्वली है तो आपका आउटफ्लो सिर्फ 400 नहीं होगा, 1000 भी जाएगा। वन नेक्स्ट ईयर थाउजेंड कैलसी प्लीज इंटरेस्ट बताइए, नेक्स्ट ईयर कैलसी प्लीज इंटरेस्ट बताइए। 320। थ्री थ्री ट्वेंटी क्योंकि 20। फोर हाँ। थाउजेंड पे आएगा प्लस 1000, तो फिर से आउटफ्लो। फिर उसके रिस्पेक्टिव रेट्स के लिए सोचना मत, आज क्वेश्चन ने 6% दिया है, आंसर आ गया। यस सर। Perfect. Next, Mr. Mehra has purchased the share of Alpha Limited for 1000. Dividend 5 years तक at the rate of 10% देते जाना है। तो हर साल 10%, 100 आउटफ्लो हो गया, बराबर। एट द एंड ऑफ 5th ईयर ही सोल्ड द शेयर फॉर 1128। यू आर रिक्वायर्ड टू डिटरमाइन बोलो कॉस्ट ऑफ इक्विटी। तो आज कंपनी के पास इनफ्लो में 1000 आया, उसके बदले कंपनी को हर साल डिविडेंड देना पड़ा। फिर लास्ट में जब उसने बेचा तो उसको पैसा कितना देना पड़ा, 1128। कौन सा रेट, ऐसा रेट जिसपे ये इक्वेट हो जाए, आईआरआर निकाल के कर दोगे, बोलो रियलाइज यील्ड अप्रोच। यस। यस सर। लास्ट यस वाला सर। सर, लास्ट वाला याद आएगा तो, रियलाइज यील्ड अप्रोच में ये कॉस्ट ऑफ रियलाइज्ड यील्ड अप्रोच का यहाँ पे रिटर्न वाला क्वेश्चन है। यहाँ पे 1 रुपी का डिविडेंड मिलता है, करंट मार्केट प्राइस इनिशियली 9 रुपए था, एंड में 9.75 हो गया, तो आपका रिटर्न्स 9.75 -9, तो 0.75 तो कैपिटल अप्रिसिएशन हुआ, प्लस डिविडेंड 1 रुपए मिला ऑन 9 रुपीज, तो ये यील्ड आ जाएगा, यील्ड। एवरीवन याद आ रहा है कुछ? हाँ यस सर। सर। हाँ, सो रियलाइज्ड यील्ड अप्रोच। तो जब हम लोग रियलाइज यील्ड अप्रोच से क्वेश्चन करते हैं, मेहरा जी वाला क्वेश्चन डन। हाँ, नेक्स्ट, सो इट इज 1 + y1, करेक्ट। इट इज 1 + 9.75 डिवाइड बाय 9। आप उसको अप्रिसिएशन को डायरेक्टली ऐसे भी कर सकते हो। रोहित याद आता है हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड का क्वेश्चन, पूरा क्लास याद आता है, रिटर्न्स यस लेके सर। किया। यस सर। तो ये एक ज्योमेट्रिक मीन से सॉल्व हो जाएगा, कोई डाउट? नो सर। एवरीवन रिविजन डन, पूरा क्लास। यू यस यस। वांट सर। मी यू वांट मी सीरियसली बोलो ना, 46 से लेके करा दूं अभी फास्ट फास्ट 5 मिनट की मिस्टेक्स कर लो पहले, सर बोलो। कर लेते हैं पहले। कर लो कर लो, कुछ भी नहीं, ऑलमोस्ट सिमिलर क्वेश्चन ही है। हम लोग बस आज के बाद फ्लोटेशन कॉस्ट अगर परसेंटेज में दिया है तो वो इशू प्राइस पे लेंगे। तो हो सकता है आपके बुक में अगर फेस वैल्यू से दिया है तो इनकरेक्ट आंसर्स हो जाएंगे, इशू प्राइस पे ले लेना, डन। हेलो, यस यस। सर। यस सर। गुड we इवनिंग start सर। ठीक है सर। discussion from question number 46. Everyone, any doubt in question 46? Everyone, any doubt in question 46? सर इसमें भाई चेंज है ना कि हाँ, 22 में से फ्लोटेशन कॉस्ट लेस होती है। यस यस यस, जो भी आपका इशू प्राइस है ना, जैसे इक्विटी प्राइस 22 है, तो आप उसी में से फ्लोटेशन कॉस्ट लेस करो, करेक्ट। ओके सर। यस। और कुछ? नहीं। नो हम्म ऐसे तो इक्विटी में से तो हमेशा टू सेलिंग प्राइस मतलब P0 में से ही लेस होता था ना नेट प्रोसीड्स के लिए। इनफैक्ट आप मुझे यहाँ पे ऐसा पूछते ना, 5% फ्लोटेशन कॉस्ट है एंड प्रेफरेंस शेयर्स आर ट्रेडेड एट 120, तो इनफैक्ट अब वो मजेदार हो गया। रीजन बीइंग, आज 5% 120 पे आएगा वन जब। ट्वेंटी पे निकलेगा। हेलो एवरीवन, यस सर। यस। यस और नो? यस। जस्ट पूरा क्लास आ रहा है?
Yes. हाँ सर। नेक्स्ट, हाँ आगे समझा रश्मि? सर एक मिनट। हाँ 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 हाँ। तो रिडीमेबल वैल्यू 100 होगा और नेट प्रोसीड्स 94 होगा। 94 नहीं होगा ना, 114 होगा ना। 114 होगा ना। 120 माइनस फिर 5। से डिस्कशन कॉस्ट ऑफ कैपिटल। कुछ नहीं बोला तो इशू प्राइस, फ्लोटेशन कॉस्ट इज सम परसेंट ऑफ इशू प्राइस। एंड क्वेश्चन सामने से बोल रहा है अगर इशू प्राइस नहीं दिया तो मान लो मार्केट प्राइस ही इशू प्राइस है, करेक्ट? हाँ हेलो, सर। हाँ, तो ध्यान से यहाँ पे डिस्कशन। Net proceeds means issue price less issue expenses of flotation cost, correct? If issue price is not given in the question, students can assume it to be equal to current market price. तो note लिख देंगे. In absence of information, we have assumed issue price to be same as current market price, which means for the Yes. current question, issue price becomes 120 minus flotation cost. 120 minus 5% gives you 114. Any doubt? No sir. Correct. Sure. Yes. Next. Once this is done, question 47. I guess no doubts at all. No sir. Easy. Yes, sir. Next. Question number 48. Almost the same stuff. Here, Yes. given market price is given. Thank you to the question. Individual market prices are given. Next. Question number 49. Any doubts? No, sir. Different ways to present market price. Overall impact remaining the same. Question number 50. Gordon formula, true worth. We have derived that P0 is equals to D1 upon KE minus G. True worth of a share is the intrinsic value. Next, 51, 52, 53. Any doubt? No sir. Next, moving further, CAPM model. I guess KE is equals to IRF plus RM minus IRF into beta factor. Do remember this figure is also termed as risk premium. What do we call it as? Risk रिस्क premium. प्रीमियम। Perfect. Theory wise, very important. Systematic risk, unsystematic risk. Correct now? What do you mean by systematic risk? Market specific risk. Unsystematic risk means Company specific. company specific risk. Perfect. Derivation of formula. Just cross check everyone. Have you written notes? Just go through systematic risk, unsystematic risk. These are market specific risk. Just cross check, just cross check. These are company specific risk. Everyone. Hello. यस सर। Perfect. Next. I guess all these questions are very easy. Have you gone through all these questions? हाँ sir. Perfect. Question number 11 being the most important. I guess very easy to solve. Should we proceed further? Yes. Perfect.